5 अगस्त 2019 को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया led by Shri dearest Prime Minister Shri Narendra Modi, our Home Minister Honorable Amit Shah ji, they abrogated Article 370 and 35A from the Constitution of India. Along with that, they also passed Jammu and Kashmir Organization Bill 2019, under which Indian state of Jammu and Kashmir was bifurcated into 2 union territories. This historical decision was welcomed by major segments of the society in general and all Kashmiri Hindus in particular. In continuation to that bill, recently Government of India introduced its amendment bill known as Jammu and Kashmir Organization Amendment Bill 2021 in Parliament. During the debate on the same bill in Lok Sabha, our Honorable and dearest Home Minister Ji gave a marathon speech which included below points. Point number 1, that 44,000 Kashmiri Hindu families are getting relief, which is of 13,000 per family per month. Point number 2, he said exodus of Kashmiri Hindu from Kashmir Valley in 1990 was under the rule of Congress. Point number 3, उन्होंने ये भी कहा कि उनका संकल्प पूरा होगा जब वो 6,000 कश्मीरी फैमिलीज को वापस अपने घरों में बसाएंगे. Point number 4, he also said that it was an NDA government who started relief for Kashmiri Hindus. And point number 5, he also said that it was NDA government who provided PM employment package for Kashmiri Hindus. ये जो पांचों के पांचों पॉइंट थे, ये सरासर गलत है. ये इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है. आज इन 5 पॉइंट्स पे हम डिस्कस करने के लिए हमने मेरे साथ यहाँ पे हम जुड़े हैं मिस्टर ललित अंबरदार जी. ललित अंबरदार जी is a building design management consultant, model, actor, current affairs commentator, social activist, and a very well-known Kashmiri Hindu media face. Lalit Amara ji, welcome to Lotus World. Namaskar, Namaskar. The second person is Shri Ramakrishnan Bhatt, R.K. Bhatt, popularly known as R.K. Bhatt. He is a social activist and president of Youth All India Kashmir Samaj, known as YAPS. He also represents Vitasta Hospital, Temples and Shrines of South Kashmir, Verinak area. He is the pioneer of PM's employment package for displaced community in Kashmir Valley, and he is also working tirelessly for the implementation of the remaining package. And the third, Mr. Ramakrishnan ji, आपका Lotus World में हार्दिक स्वागत. Thank you, namaskar. And the third panelist is Shri Shadilal Panta. Shadilal Panta ji is president of Jagti Kashmiri Migrant Residents Association, a social activist, and also president of a political organization called as Kul Hind Soon No Pan Kashmir. Shadilal ji, आपका Lotus World में हार्दिक स्वागत है. And the last but not the least, our dearest Ashutosh Raina, popularly known as Ash Raina, is a social activist, founding member of Kashmiri Pandit Australia. By profession, Ashutosh ji owns a business entity called as Knowledge Partners Pro in Brisbane, Australia. Ashutosh ji, आपका Lotus World में हार्दिक स्वागत. Thank you, Rakesh. और इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं Kakni Building Humanity. Kakni Building Humanity is a trust, a NGO which operates in major segments like education and disaster management during the natural calamities, upliftment of underprivileged and economically backward classes, health care for backward and remote areas, and activities related to nation building. Since Kakni Building Humanity is an NGO and thus they totally depend on our donations to perform their duties. Thus, Lotus World on behalf of Kakni Building Humanity appeals to general public to come forward and donate for the social cause. For donations, you can visit their website www.kakni.org, or you can email them at info India November Foxtrot Oscar @buildinghumanity.in. So, ये हमारा डिस्कशन पैनल है. तो सबसे पहले डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं जो अमित शाह जी ने, जो हमारे डीआरएस होम मिनिस्टर, उन्होंने जो 4 प्रश्न, जो 4 चीजें मेनली उन्होंने जो बोली है, हम हर एक पैनलिस्ट के पास जाएंगे, उनका एक करेक्टिव वर्जन लेंगे
बिकॉज कि जो इनकरेक्ट इसमें है उसको वी विल डू द करेक्शन एंड देन वी विल डिस्कस कि क्या रीजन था कि वो वैसा भाषण वहां पे दिया गया। तो सबसे पहले मैं ललित जी के पास जाना चाहता हूँ। ललित जी, what are the correct figures of Kashmiri Hindus who have migrated to Valley? Does government of India has the correct figures? So you want to remember? Is it Laliत ji, addressed aap, yes, Okay. it's addressed to you. Yeah. Just before we get into the details, may I give a bit of background first of all, and also something breaking news to you. Yesterday, the Delhi police arrested some criminals who were out to target Sushil Pandit, and it's a big thing, and they are trying to muzzle our voices even in exile. You know, just a second on that. One of the major aspects of genocide is also, it's not just physical extermination, it's also to kill the will to resist even in exile. They had thought, उन्होंने सोचा था कि हम हिंदुस्तान की गलियों और सड़कों और धूल मिट्टी में खो जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। पिछले 30 साल से जो हमारी मुहिम है दुनिया भर में, हिंदुस्तान के अंदर की आज की तारीख में 130 करोड़ हिंदुस्तानी जो है कश्मीर के स्टेक होल्डर बन गए। और आज अगर कश्मीर हिंदुस्तान के साथ है, ये हम कश्मीरी हिंदू लोगों की वजह से, नहीं तो सक्सेसिव गवर्नमेंट ने दे हैड ऑलमोस्ट रिटन इट ऑफ। तो सुशील पंडित की जो आवाज जो है उनको बहुत तकलीफ लग रही है हमारे दुश्मनों को, तो उनके ऊपर कल जानलेवा हमला करने वाले थे लोग ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ, तो उनको दिल्ली पुलिस ने कल अरेस्ट किया है। तो शुक्र है परमात्मा का, भगवान का शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को भी बोलता हूं, जहां पे जम्मू में है, दिल्ली में है, दुनिया कहीं पे भी है, क्योंकि इंटरनेशनल प्लॉट है, तो कश्मीरी हिंदू एक्टिविस्ट है, उनके लिए खासकर मैं बताना चाहूंगा कि आप प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जब हम ये यहाँ पे ललित जी मैं आपको रोकना चाहता हूँ। लोटस वर्ल्ड इस चीज की निंदा करता है कि हमारे प्रिय नेता, हमारे प्रिय स्पीकर, हमारे प्रिय एक हीरो जो सुशील जी, उन पे ऐसा कुछ एक्ट करने का प्रयास भी हुआ। प्रयास करना तो छोड़िए, इसके बारे में सोचना ही कोई सोचेगा तो हमें हमारा खून खोलता है, और वो भी हमारे प्रिय नेता के प्रति। तो इसके लिए लोटस वर्ल्ड ऐसी इस चीज की निंदा करता है। God bless. That's the spirit. That's the spirit. Okay. दूसरी बात सर, ये प्रिंसिपली मैं बताना चाहूंगा, जो प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज जो है, मैं प्रिंसिपली एज एन एक्टिविस्ट मैं इसके खिलाफ हूँ। किस सेंस में? देखिए, हमारी कम्युनिटी, हम लोग सब लोग क्या गर्व करते हैं कि हमारे सारे बच्चे, कोई सीईओ है, कोई बाहर है, आप जैसे सब लोग अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ये मत भूलिए कि मेरे समाज के अंदर, मेरी कम्युनिटी के अंदर गुर्बत भी है, मजबूरी भी है, और उस मजबूरी का निवारण करना सरकार की जिम्मेवारी है। और अच्छा है सरकार ने उस वक्त उसका संज्ञान लिया, लेकिन क्या किया? नौकरियां दी तो कहां दी? उन्हीं शहरों और गांवों में जहां से उन बच्चों के पेरेंट्स को, उनके खानदानों को घर से बेघर कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि आइडिया ये था, जिन दिनों कश्मीर के ऊपर, जैसे मैं कह रहा था, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने कश्मीर को राइट ऑफ करने की कोशिश की थी, तो सक्सेसिव गवर्नमेंट ने यह भी कोशिश की कि कश्मीरी हिंदुओं को उस सेक्युलर एक्सपेरिमेंटेशन के लिए गिनी पिग्स का इस्तेमाल किया जाए। कश्मीर के अंदर किसी तरह से हिंदू प्रेजेंस दिखा दी जाए, यहाँ पे हिंदू भी है। And so we are trying to negotiate, whether it be Vajpayee ji's negotiations with Musharraf, and then followed by Manmohan Singh's. Almost, they say Manmohan Singh was also preparing a note for his Nobel ceremony. इतनी यहां तक हुई, तो आगरा का समिट फेल हो गया, तो यहां तक हुआ था। लेकिन अभी देखिए, आज की तारीख में ये सिचुएशन है कि कश्मीर का मुद्दा तो छोड़ो, आज की तारीख में आज की सरकार नहीं बोल रही है पाकिस्तान को कि टॉक्स एंड टेरर विल नॉट हैपन टुगेदर। टॉक्स की बात खत्म है, सिर्फ बता रहे हैं कि आपके यहां से जो आतंकवाद आ रहा है, और आतंकवाद खत्म करो, ये है। और दूसरा, 5 अगस्त 2019 कश्मीर का मसला नहीं रहा। सो वी विल नॉट टॉक in terms of conflict when we talk it. तो जब कश्मीर के अंदर जब हम बात कर रहे हैं, तो जब आप उन लोगों को जिनको नौकरी देनी है, सरकार का ये जिम्मेवारी है नौकरी देना उन बच्चों को, लेकिन कहां थी, ये भी तो बहुत जरूरी है। मुझे अनफॉर्चुनेटली हमारी कम्युनिटी में, चाहे किसी वजह से जाने में अनजाने में, उन्होंने उस मुहिम का समर्थन किया, जबकि कई लोग ये कह रहे थे इनको नौकरी दीजिए, जम्मू प्रांत में दीजिए, इतना बड़ा प्रांत है जम्मू में हमें प्रांत दीजिए, कोई पहाड़ी इलाके में जम्मू में दे दीजिए, लेकिन कश्मीरी भेजना नंबर 1। दूसरी बात यह है कि आपने, जब होम मिनिस्टर ने आपका जो ये पढ़ा है, तो मैं समझता हूं कि अमित शाह, जिस आदमी ने 5 अगस्त को 2019, देखिए बीजेपी का कश्मीर 370 हटाने का जो ये
बरसों से उनके एजेंडा में रहता था। 2014 से 2019 तक भी था उनके एजेंडा में। इनफैक्ट 2014 से 2019 में तो उन्होंने ब्लंडर के ऊपर ब्लंडर किए। महबूबा मुफ्ती के साथ गठजोड़ किया, मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ गठजोड़ किया, ठीक है। और ये भी मानिए हमियों की वजह से हमने जो प्रेशर डाला तो उन्होंने वो अलायंस तोड़ी। और ये भी मान लीजिए उन्होंने अलायंस नहीं तोड़ा होता 2019 के रिजल्ट ऐसे नहीं आने वाले। हम लोग ग्राउंड पे हिंदुस्तान के कोने कोने में बात कर रहे थे, सब लोग इसकी निंदा कर रहे थे उन्होंने किसके साथ अलायंस की। अब जब 2019 में सब होता है तो इसका मतलब कुछ खास परिवर्तन पार्टी में भी आए हैं। तो मैं समझता हूं कि अमित शाह का उस स्टेचर पे आना उस वजह से हुआ। तो ये नहीं कहूंगा कि कश्मीरी हिंदुओं के प्रति कोई किसी दुर्भावना के साथ उन्होंने ये फिगर दिए है। और ये देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर जो अभी ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी चाहे वो किसी भी नाम से हो, किसी भी धर्म से हो, वो अभी भी पुराने इकोसिस्टम्स के साथ चल रही है। कश्मीरी हिंदू, शादीलाल जी इसका समर्थन करेंगे, मिस्टर भट्ट समर्थन करेंगे। कश्मीरी हिंदुओं के नाम से जो भी कोई फाइल होती ना, उसको एक टेबल से दूसरे टेबल तक जाने में महीनों लगते हैं, छूटते नहीं। अभी यहाँ पे 45 बच्चे जो है इसी पैकेज के अंतर्गत 45 लड़के लड़कियां पिछले 4 महीनों से जम्मू प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी नौकरी हुई है लेकिन उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जा रहा। उनकी बेचारों की उनका दुर्भाग्य यह है कि अब उनकी एज ऐसी होगी कि दोबारा अप्लाई भी नहीं कर सकते। लेकिन आज तक उस ब्यूरोक्रेसी की वजह से उनकी फाइल के ऊपर कोई गवर्नर ने भी बोला कर देंगे, वो ब्यूरोक्रेट्स भी बोला कर देंगे, लेकिन कोई कर नहीं रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये एक जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी वजह से नीचे से जो डॉक्यूमेंट गया ऊपर तक पहुंच गया और अमित शाह के तक पहुंचा है। लेकिन ये बड़ा सीरियस मैटर है, क्योंकि जब होम मिनिस्टर लोकसभा में ये बोलते हैं तो लोकसभा के रिकॉर्ड्स में जाता है। लोकसभा के रिकॉर्ड्स को जानने के लिए इसीलिए ये जो प्रतिक्रिया जो हो रही है पूरे समाज की तरफ से अक्रॉस द बोर्ड जो प्रतिक्रिया हो रही है, मैं समझता हूँ ये जायज है। लेकिन ये ध्यान में रखना पड़ेगा हम इसका राजनीतिकरण ना करें। चाहे हम लोग किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, बीजेपी का अभिनंदन करना पड़ेगा, क्योंकि 2019 में क्या ये तो हिस्टोरिकल नेशनल पर्सपेक्टिव से देखे, कश्मीरी पर्सपेक्टिव से देखे, हम लोग से ज्यादा कोई नेशनलिस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोगों का जो जेनोसाइड हुआ इसीलिए तो हुआ कि हम भारतीयता के प्रतीक है कश्मीर के अंदर, हम एक चलता फिरता तिरंगा थे कश्मीर के अंदर। इसलिए जो भी कार्रवाई 2019 में हुई है उस परिपक्ष में ये मान के चलना कि अमित शाह ने से जो गलती हुई है एक स्टेचर उनके होम मिनिस्टर के यहाँ पे, वो जान के गलती नहीं हुई है। उसकी वजह मैं वजूहात मानता हूं कि वो जम्मू कश्मीर की जो ब्यूरोक्रेसी है वो इसके लिए मुनव्वस है। देखिए गवर्नर ने आते ही बोल दिया लला आरिफा। तो मुझे मौका मिला था उसके दूसरे दिन किसी डिबेट के अंदर, मैंने बीजेपी के प्रवक्ता को बोला भैया अपने गवर्नर को बोल दीजिए जब तक कश्मीर की उनको समझ ना आ जाए हिस्ट्री और कल्चर, तो अपने जबान के ऊपर ताला लगा के रख दें तब तक जब तक वो समझ ना रहे। तो इसलिए वो भी कौन फीड करता है, लोकल ब्यूरोक्रेसी। तो उसने ये हम जो अगर हमें डिमांड करनी है तो जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी को ओवरऑल करना चाहिए। जो जिस आयरॉनिकली जो ये रिऑर्गेनाइजेशन बिल की जो बात कर रहे थे उसके अंदर ये भी है कि जम्मू कश्मीर का जो काडर है अब वहां से वो परमानेंसी नहीं देखेंगे। जम्मू कश्मीर का जो एक बाबू है अब उसकी नौकरी अरुणाचल में हो सकती है, हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में हो सकती है। तो वो भी एक बहुत जरूरी है। नहीं तो वो सोचते थे कि जम्मू कश्मीर में नौकरी लग गई, जिंदगी भर के लिए लग गई, और वहां के वो खासकर जब उनको गुश्ताबे खाने का मौका मिलता था, मानसिकता उनकी वही कश्मीरी इस्लामिक जो इकोसिस्टम है उसको फॉलो करने वाली हो रही थी, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। Yeah, Lalit ji, on that, first let's do one thing. Let's correct the statement what was made in the parliament. So मेरा आपसे यही प्रश्न फिर से मैं पूछता हूँ कि जो कश्मीरी हिंदुओं की जो फिगर्स है, पहली चीज तो ये फैमिलीज में क्यों काउंट होती है? फैमिली से क्या होता है कि हम 1 लाख के आसपास आ जाते हैं। अगर हम नंबर ऑफ पीपल में की बात करेंगे, अफराद की बात करेंगे, तब क्या होगा कि 7-8 लाख के ऊपर हमारा काउंट जाता है। तो एक तो इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको नंबर ऑफ फैमिलीज के हिसाब से डिवाइड कर रही है, प्लस जो भी अगर वो भी करी तब भी करेक्ट फिगर्स नहीं दे रही है। तो एज पर द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स जो कि रिलीफ कमिश्नर जम्मू, उधमपुर या दिल्ली में रजिस्टर्ड माइग्रेंट्स है, तो उनका एग्जैक्ट या ऑफिशियल फिगर क्या है? देखिए ऐसा है, ऑफिशियल फिगर जो तथ्य हैं, जो मैं जरा इनकी तरफ किसी को ध्यान नहीं देता हूं, लेकिन जो फिगर्स हैं मेरे ख्याल में बाकी लोगों के पास होंगे। टोटल जो रजिस्टर्ड फैमिलीज है 43,930 है, 43,930
930, ये सोर्स एक ऑथेंटिक हो सकता है कि जहां से मैं इसको कोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक सोर्स ऑथेंटिक हो सकता है जहां से मैंने लिया है। 43,930, 43,930 टोटल रजिस्टर्ड फैमिलीज है, जिनमें से जो ले रहे हैं रिलीफ, जो ले रहे हैं वो सिर्फ 15,000 जो नहीं, नंबर ऑफ पर्संस, इफ यू ट्रांसलेट इनटू नंबर ऑफ पर्संस, इट इज बिकमिंग 1,53,341, 1,53,341 इज द नंबर ऑफ पर्संस जो एज पर दीज फैमिलीज है, जिनमें से हिंदू जो है वो 39,576 फैमिलीज है, सिख जो है 1,714 है, और मुस्लिम जो है 6,504 फैमिलीज हैं, और रिलीफ जो लोग ले रहे हैं वो सिर्फ फैमिलीज है 20,889, 20,899 फैमिलीज ले रही हैं, जिसका मतलब पड़ता है। और हाँ, इसमें इफ यू अगर इसकी एनालिसिस आप देखोगे, अगर आपके परिवार में 10 लोग हैं तो आपको 10 लोगों को नहीं मिलेगा, ये सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 4 पर्सन है, और 4 पर्सन में अगर उस परिवार के अंदर 3 ही लोग हैं तो 13,000 नहीं मिलेगा। 3 लोग अगर हैं तो 13,000 नहीं मिलेगा, तो 13,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, तो इस एट द रेट ऑफ ऑलमोस्ट 108 रुपया पर डे पर पर्सन, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 4 फैमिलीज के हिसाब से 13,000 बनता है। तो ये जो सारा गणित है ना, मैं कई बार इसके बारे में बोल चुका हूं, बड़े प्लेटफॉर्म पे बोल चुका हूं, ये जो सरकार की तरफ से हमको जो रिलीफ मिलता है ना, इसके साथ तो हम 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते। आप पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का किराया नहीं निकल सकता, लेकिन ये हम लेने के लिए तात्पर्य है, मजबूर है, क्योंकि जब तक कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड रिवर्स नहीं होता, तब तक हिंदुस्तान की सेक्युलर कॉन्शियस के ऊपर बदनुमा दाग रहना चाहिए, क्योंकि कश्मीरी रिफ्यूजीज के नाम से वहां पे फाइलें बनती है, वहां पे स्कीम बनती है, प्लानिंग होती है, उनको तब तक ये याद रहना चाहिए कि जब तक हम पलायन के अंदर है कि हम लेते हैं, नहीं तो ये 13,000 रुपए से हमारा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बन सकता आज की तारीख में 13,000 रुपए से। ललित जी, on that note, I just want to add one my personal experience. मेरे ताऊ जी जो कि खुद अभी वो स्वर्गवासी हैं, वो रिलीफ लेते थे, बहुत बूढ़े हो गए थे, तो एक बार हमने उनसे पूछा कि आप रिलीफ क्यों, मतलब अब हम कमाते हैं वगैरह, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको बैंक जाना पड़ता है, तो why you go there? वो बोलते हैं कि रिलीफ जो मैं लेता हूँ ये मुझे याद दिलाता है कि मैं एक माइग्रेंट हूँ और मुझे एक दिन घर वापस जाना। अगर मैं जिस दिन मैं रिलीफ लेना बंद करूंगा, उस दिन मैं भूल जाऊंगा कि मैं शरणार्थ। इसीलिए मैं बूढ़ा भी हूँ, 2 बैसाखी पे जाके बैंक जाता हूँ और वो रिलीफ के 6,000 रुपए में निकाल के लाता हूँ, लेकिन उससे मेरा घर नहीं चलता है, लेकिन कम से कम मेरी जो सोच है, मेरी जो वतन वापसी जाने की जो मेरी एक उम्मीद है, वो कायम रहती है। So on that note, नमन। On that note, let me move to Mr. Bhatt, R.K. Bhatt. बस अब जो प्रधानमंत्री का जो एम्प्लॉयमेंट पैकेज था, ये किस साल प्रारंभ हुआ था, और जो अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर बता रहे हैं कि उन्होंने प्रारंभ किया था, ये इसमें कितनी सच्चाई है, और एक कंप्लीट पैकेज क्या, इसका टोटल लेआउट क्या है, कितना अभी तक प्रोक्योरमेंट हुआ है, कितना अभी पेंडिंग है, तो इसके बारे में आपकी हम राय जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं तो लोटस वर्ल्ड का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए हैं, क्योंकि हमारे डिफरेंट लोगों को आज इनविटेशन जो मिला कि वो अपनी बात रखे, और जो सब्जेक्ट आपने चुने हैं वो सब्जेक्ट बड़े इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ही नहीं है, वही है कि जो हमारे रूट्स के साथ हमें कनेक्ट कर सकते हैं। You have chosen that subject. So I'm again grateful to you. बट साहब, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, आप आगे बढ़ो उससे पहले मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमने एक हैशटैग प्रारंभ किया है, हैशटैग है #टेंट वर्सेस पार्लियामेंट। आपकी राय हमें इस हैशटैग के द्वारा ट्विटर या क्यू ऐप पे दे सकते हो, हम दोनों जगह उपलब्ध हैं। तो हम अगर आपको हमारे किसी भी पैनलिस्ट से कोई प्रश्न पूछना है, आप हमें हैशटैग द्वारा, ट्विटर पे हैशटैग द्वारा आप हमें प्रश्न कर सकते हो, या हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब या फेसबुक पे कमेंट में भी आप हमें वो प्रश्न पूछ सकते हो, और वो प्रश्न हम आपके पसंदीदा पैनलिस्ट से पूछेंगे। सॉरी बट साहब, आपको रुकना पड़ा क्योंकि मुझे ये पहले अनाउंस करना चाहा था, मुझे भूल गया। सो यू कैन कंटिन्यू बट साहब। ओके, जब मैं अपनी बात यहाँ पे रखता हूँ तो हमें एक चीज जहन में रखना पड़ेगा कि आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग माय इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हियर, आई एम रिप्रेजेंटिंग वन सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी. We have involved so many people in our community with
the voice which I'm going to represent here. जो प्रधानमंत्री का दिया हुआ पैकेज है, that package was announced in 24th of April 2008 by then government, जो यूपीए का उस टाइम का गवर्नमेंट था, led by Dr. Manmohan Singh. He announced this return, relief and rehabilitation package for displaced persons who are living outside the valley for last almost 20 years of that point of time. तो उन्होंने जो एक उनका प्रोग्राम जब यहाँ था, उन्होंने अखनूर ब्रिज का एक इनॉग्रेशन करना था, तो वहां पे उन्होंने इस पैकेज की अनाउंसमेंट की। उसके बाद जब इसका गैजेट आया, तो गैजेट में इस पैकेज के 9 कंपोनेंट्स थे। ये इट वाज नॉट ओनली सिंगल कंपोनेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओनली, द पैकेज इज कंप्राइजिंग ऑफ 9 कंपोनेंट्स। Since the package was not being, it was not discussed with the community people who are actually representing the community, it was, nobody was taken into the confidence, mainly from the Jammu and Kashmir who intend to return Kashmir Valley at any point of time. It was not discussed with them. तो उस वजह से वो सब चीजों को देखते हुए, और दूसरा पहलू जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में एक नैरेटिव क्रिएट किया गया था, जो 20 साल एक नैरेटिव चला, जिसकी बात ललित अंबरदार जी भी यहाँ कर रहे थे, उस नैरेटिव को दिमाग में रख के और प्रधानमंत्री की दी हुई पैकेज जिसका एक मूल था कि हम अपने कनेक्ट रूट्स के साथ दोबारा रिकनेक्ट हो सकते थे, इन दो बातों को मद्देनजर रख के हमने, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे किया कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में कितने लोग इस टाइम तैयार होंगे कि अगर हम इस पैकेज को एक्सेप्ट करें। तो बाय एंड लार्ज उसमें एक बात निकल के आ गई कि अगर हम इस पैकेज को एक्सेप्ट करेंगे, वी शुड नॉट एक्सेप्ट इट एज द रिटर्न पैकेज ऑफ कश्मीरी पंडित्स, रादर वी कैन एक्सेप्ट इट एज अ सर्वाइवल पैकेज इन एम्प्लॉयमेंट। तो हमने जब सर्वे किया, आई रिसीव्ड इमीडिएटली कंसेंट फ्रॉम almost 15,000 Kashmiri youngsters. That is in record. I'm not talking in air here. I have everything recorded in my computer. 15,000 Kashmiri Pandits ने हमें लिख के कंसेंट दिया यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज को कि if we are being given these jobs in Kashmir Valley, we are ready to go there. Nobody can stop us. On that basis, at that time we had a meeting with the government of India in Srinagar and in Delhi itself. Then we represent there the voice of 15,000 youngsters of my community. हमने प्रधानमंत्री और स्टेट के उस टाइम के हेड जो थे उनको ये कहा कि आप ये पैकेज के एम्प्लॉयमेंट पैकेज को ओनली, क्योंकि 9 कंपोनेंट्स में आपका मकान बनाने की सुविधा 7.5 लाख रुपए की रखी गई थी कि आप अपने घर जाइए, जब आप प्लेन के लेवल तक पहुंचेंगे आपको इतना पैसा रिलीज किया जाएगा, फिर इतना दिया जाएगा, फिर इतना दिया जाएगा। क्योंकि हमने भी ये डिसाइड किया था कि कश्मीर के हालात ऐसे नहीं हैं, ना तब थे ना इवन आज है 2021 में, कि हम अपने घरों को वापस जा पाएं। इसके साथ मैं जो कहीं पे किसी के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, ना हम तब जा सकते थे और ना आज हमें हालात अलाउ कर रहे हैं कि हम अपने अपने घरों में वापस चले जाएंगे। उस टाइम उसमें स्कॉलरशिप थी, उस टाइम उसमें ओवर एजेड सेक्शन के लिए एक कंपोनेंट दिया गया था कि हम उनको सॉफ्ट लोन्स दे देंगे, और उसमें स्कूलिंग वगैरह ये सब प्रोविजन जो थे ये 9 कंपोनेंट्स की पैकेज में रखा गया था। तो हमने बाय एंड लार्ज उस टाइम ये रिजॉल्व किया 15,000 लोगों से बात करके कि हम एम्प्लॉयमेंट पैकेज को एक्सेप्ट करेंगे, और ग्रेसफुली हमने उसको एक्सेप्ट किया। और वही एक रीजन है कि आज आप खुद डायरेक्टली यू आर इन्वॉल्व्ड एट योर रूट्स, यू आर कनेक्टेड विद योर रूट्स। मैं यहाँ पे ललित अंबरदार जी से इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं करता हूँ कि हमें ये पैकेज जम्मू या देश के किसी कोने में एक्सेप्ट करनी चाहिए थे। ये नैरेटिव, ये थ्योरी हमने 20 साल बर्दाश्त की थी अपने लोगों की कि हम नहीं जाएंगे, हम वहां करेंगे, यहाँ करेंगे। फर्क इतना है हमारे और आप में कि हम ये लड़ाई कश्मीर की जमीन पर लड़ रहे हैं, और आप ये कभी टेलीविजन पर लड़ रहे हैं, कभी बॉम्बे से लड़ रहे हैं, कभी अमेरिका से लड़ रहे हैं, और हम खुद से आप लड़ रहे हैं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बट we have to fight our struggle
We have to reconnect our roots and we have to fight our struggle from our roots, not from outside our roots. तो उस टाइम जो एक हमारा इनिशिएटिव रहा कि हम कश्मीर जाएंगे, वो मैंने केवल नहीं कहा, वो केवल मेरे परिवार ने नहीं कहा, वो उस टाइम 15,000 लोगों ने कहा, जिसमें 4,000 के आसपास लोग कश्मीर में इस टाइम अपना सर्विस दे रहे हैं। और इसके अलावा आज भी कम से कम 20,000 लोग तैयार है कश्मीर वाली जाने के लिए। मैं इस बात को आप तक जरूर पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन साथ में हमारे पास 1 घंटा है, उसमें से आधा घंटा चला गया है, तो हम I just want 2-3 minutes more. हाँ, मैं आपसे ये एक बात क्लियर कराना चाहता हूँ, उस टाइम भी लोगों ने हमारे प्रति अननेसेसरी ऐसी एडवर्टीजमेंट रॉन्ग बनाई कि लोगों को हमारे लिए रोष बना, हमारा दफ्तर जला दिया गया, हमें पत्थर मारे गए, हमारे घर को कहा सोशल बाइकाट करिए। ये सब फेस करने के बावजूद मैं 2021 में ये कहना और स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं, मेरी संस्था और ये जितने लोग वहां पे गए, इट्स नॉट आवर रिटर्न एट ऑल, इट इज ओनली आवर सर्वाइवल। हाँ, ये एक सीढ़ी, अगर हम सीढ़ी में आगे बढ़ना है तो एक कदम आगे बढ़ने का ये रास्ता जरूर है, बट इट इज नॉट द रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित्स। नंबर 2, जो पार्लियामेंट में आपको जो प्रश्न पूछा गया है, कृपया करके आप इसको संक्षेप में बताइए कि जो टोटल एम्प्लॉयमेंट पैकेज की बात हो रही है, कंप्लीट पैकेज की नहीं, इसमें आप हमें बताइए कि टोटल कितना प्रोक्योरमेंट हो चुका है, कितने लोग उसमें ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और कितने के लिए अभी यू आर फाइटिंग, उनको अभी तो ऑफर लेटर या ज्वाइनिंग लेटर वगैरह नहीं आ चुका है। वी वांट स्टैट्स सो दैट ये हम अपने पूरे दर्शकों को बताएं कि स्टैट्स क्या है और पार्लियामेंट में क्या बोला गया था। तो हम इसके ऊपर आएंगे, हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमको एक मिनट का हम एक कमर्शियल ब्रेक लेंगे, हम तुरंत वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। धन्यवाद। जानते हैं कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारे माननीय होम मिनिस्टर जी ने जो पार्लियामेंट में कहा उसके बारे में, और इसी के अंतर्गत मिस्टर आर के भट्ट जी बोले थे। आर के भट्ट जी, मैं आपके पास वापस जाने से पहले मैं आपके वापस जाता हूं और आपसे मैं संक्षेप में उत्तर चाहता हूं कि आप हमको स्टैट्स दीजिए, कितने लोगों को ये जॉब मिल चुकी है और कितने अभी भी वेटिंग लिस्ट में है। देखिए, टोटल जो ये डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयमेंट थी और बाकी सॉफ्ट लोन्स वगैरह थे, तो 6,000 जो 2008 में अनाउंस किया गया, और अभी 10-12 साल के बाद भी उसका टोटल अभी जब जो कश्मीर में जिनको एम्प्लॉयमेंट मिली वो केवल 3800 के आसपास है, और अभी भी आपके पास 22,000 वैकेंसी पेंडिंग है जो अपना फिलअप कर रहे हैं। ना ये प्रीवियस गवर्नमेंट ने कर पाई, ना अभी की गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दूसरा, जो इनके बाकी कंपोनेंट्स हैं उनकी तरफ हम जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो जो बाकी कंपोनेंट है वो आज का मुद्दा नहीं है। तो आपके उत्तर से मुझे ये समझ आता है कि जो अमित शाह जी ने जो 6,000 की बात की थी किसी हद तक सही की थी। अब मैं ललित जी आपके पास आने से पहले मैं सबसे पहले बताइए। थोड़ा इंटरवेंशन था मेरा ये मैं आज चूंकि इंट्रा कम्युनिटी डिस्कशन हो रहा है तो मैं नहीं चाहूंगा कि हम किसी चीज के बारे वाद विवाद करें। मिस्टर आर के भट्ट को मैं जानता हूं, वो बहुत बड़े लीडर हैं
और मैं उनकी तुलना में, मैं लीडर भी नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा एक्टिविस्ट हूँ। और उनकी जानकारी के लिए, मैं टेलीविजन तो अभी कुछ 4-5 साल से हुआ, मैं भी फील्ड के अंदर हूँ, जोर पे काम करते हैं, आपके जितना नहीं किया क्योंकि आप नेता हैं, मैं नेता नहीं हूँ। लेकिन एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि जो ये प्राइम मिनिस्टर पैकेज था, ये जम्मू के अंदर होना चाहिए था। अगर नहीं था तो मैं पर्सनल लेवल पे, आप इसको बुरा ना मानिए, आप खुद कहां रहते हैं? अगर आपको लगता है कि रूट के साथ कनेक्ट होना, तो इन्हीं 15,000 बच्चों को क्यों हमने बलि का बकरा बनाना है? एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए सर। ये ललित जी, लेट मी कंप्लीट we are diverting from the can I humbly ask you one question? Can I एक मिनट सुनिए, मैंने कंप्लीट किया सर। लेट मी कंप्लीट। जो आपका जो डॉक्यूमेंट है ना, जो साइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट है, वो मैंने ये जो दिल्ली के जो पत्रकार हैं, जो ट्रेड यूनियन वाले हैं, वो कहते हैं कि ये ह्यूमन राइट का वर्स्ट पॉसिबल वायलेशन है, जो उनके टर्म्स एंड कंडीशन है उस जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, जो हमारा जो इन बच्चों को उस पैकेज के अंदर, कश्मीर के अंदर जॉब, जिन कंडीशंस के अंदर काम करना है। दूसरी बात, आप ये जानते हैं कि जो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में शुरू हुआ, वही ये सरकार भी दिखाना चाहती है, जैसे अमित शाह जी ने बोला कि हमारा ये वापस ले जाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। आप ये बस समझे, मैं आपके मंशा पे दोष नहीं दे रहा हूं, मैं सरकार की मंशा की बात कर रहा हूं। इसलिए मैंने कहा मैं डिबेट आपसे के साथ नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार, तब भी मनमोहन सिंह यही चाहती थी और आज की सरकार भी यही चाहती है। ये अमित शाह के मुंह से निकला, इट वाज अ फॉपा। ही सेड कि हम लोग 6,000 नौकरियां दे रहे हैं, 6,000 फ्लैट बना रहे हैं, इस तरह से कश्मीरी हिंदू का वापस जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अमित शाह जी का संकल्प ब्यूरोक्रेट्स, होम मिनिस्टर ये तान के रखे हुए हैं पंडितों को, हम नौकरियां उनकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठा के, अभी देखिए का कैंप क्यों है, फिर हम इतने क्यों रेफ्यूजी बने पड़े? ललित जी एंड अजय पंडित मैं मानता हूं सर, इट इज अ डिबेटेबल टॉपिक, लेट्स डिबेट दैट सम अदर डे। आज का जो मेन मुद्दा है वो है कि जो हम टेंट में है और हमारी जो बात पार्लियामेंट तक पहुंची, ये कितनी डिस्टॉर्टेड जाती है, या कितनी इसके खंड होते हैं, किस कलर में निकलती है और किस कलर में खत्म होती है, उसके ऊपर ये डिस्कशन। तो लेट्स कीप इट टू द पॉइंट ओनली। और ऑन दैट नोट लेट मी मूव टू आवर नेक्स्ट पैनलिस्ट शादिला जी। मैं वापस आऊंगा, once we will open the debate, we will open discussion, then I will come to on that। लेकिन पहले मैं अमित शाह जी के जो उन्होंने ये बातें बोली है उनका करेक्शन करना चाहता हूं, उसके बाद हम डिस्कशन चालू करेंगे। शादिला जी, मैं आपसे ये प्रश्न करता हूं कि जो रिलीफ मिलता है हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 13,000 रुपए, इसमें कितनी सच्चाई है? पहली चीज, किस फैमिली को कितना मिलता है, कम से कम अमाउंट क्या है, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट क्या है, और क्या ये खाली कश्मीरी हिंदुओं को मिलता है कि इसमें मुस्लिम, सिख, बाकी भी इससे फायदा उठाते हैं? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या ये खाली जगती में जो रहने वाले माइग्रेंटों को मिलता है कि जो और भी कहीं माइग्रेंट है उसको मिलता है? राकेश जी धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया आज। जो ये राशन रिलीफ है, जो पहले पार्लियामेंट में हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बयान दिया कि 44,000 फैमिलियां राशन रिलीफ लेती, वो सही नहीं है, वो बात गलत है। कश्मीरी पंडित, मैंने उस दिन ही उसी वक्त स्टेटमेंट दिया था, कश्मीरी पंडित 19,000 के आसपास में टोटल राशन रिलीफ ले रहे हैं, जबकि हर साल में इसमें चेंज हो रही है। कुछ सिंगल सोल्स है हमारे जिनकी डेथ होती है, बुजुर्ग लोग होते हैं, वो उसमें कट जाते हैं, वो राशन कार्ड बंद हो जाते हैं, या कुछ बाइफिकेशन होती है जो बढ़ जाते हैं। इसलिए ये आंकड़ा एक साल का ही नहीं, जो आंकड़ा आज है ये पिछले 1 साल का होगा, ये 2 साल का होगा, प्रेजेंट इस वक्त पता नहीं, ये होगा 19,000 20,000 के आसपास में होगा। और ये रिलीफ जो मिलता है, ये 400 वाली फैमिली को 13,000 मिलते हैं, जबकि 100 वाली फैमिली को 3,225 रुपया मिलता है, और 200 वाली को 6,500 रुपया मिलता है। इसमें सोल की एज भी इन्वॉल्व है कि 1 महीने के बच्चे को भी 3,200 मिलता है? जो बच्चा जिसकी बर्थ होती है उसको 4 साल तक सिर्फ 400 रुपया मिलता है, और एक पाव 200 ग्राम खांड मिल रहा है, चीनी मिल रहा है, उसको वो रिलीफ नहीं मिलता है 3,225 रुपया। 400 रुपये से क्या होता है? 400 रुपए के डायपर भी नहीं आते सर, एक पैकेट डायपर भी आजकल 599 का आता है।
बिल्कुल सही बात है। इसीलिए हम आज 5 महीने से सड़क पर है। कोई आ जाए, ये सरकार आए, जो सरकार बता रही थी, अगर मैंने वोट नहीं दिया होगा, मेरे भाई ने इस सरकार को वोट दिया, बीजेपी आनी चाहिए, मेरी बहन ने वोट दिया होगा, इसीलिए बदलाव आ जाएगा, बीजेपी वाले हमारी सुध लेंगे, लेकिन नहीं हुआ। इसीलिए हम 5 महीने से सड़क पर है, रो रहे हैं, हमारा सुन लो, इस रिलीफ को बढ़ा दो, और जिन घरों में नौकरी नहीं आज तक मिली है, उन घरों में नौकरी दी जाए, ये हमारी मांग है। जो ये बयान आया, ये हमारे लिए बहुत दुखद बयान है, जो नहीं आना चाहे। एक होम मिनिस्टर को पता होना चाहिए कि मेरे कितने लोग हैं और कहां पर है और किसको क्या मिल रहा है। जो ये बयान आया था वो गलत बयान था। 44,000 फैमिलियां रिलीफ नहीं लेती है, बल्कि 2,000 के आसपास रिलीफ लेती है। और हम में से जहां जगती में हमारे साथ वो मुसलमान भाई है जिसका भाई मिलिटेंटों ने मारा है, जिसके बाप को मिलिटेंटों ने मारा है, वो भी मेरे साथ यहाँ जगती में रिलीफ देता है और नॉन कैंपों में भी रिलीफ देता है। ये रिलीफ जगती को ही नहीं मिलता है, कैंप वालों को, जो नॉन कैंपों में भी है, जो रिलीफ होल्डर है, जिनका गुजारा नहीं है, जिनकी नौकरी नहीं है, जो बिजनेस करने के काबिल नहीं है, उन लोगों को ये रिलीफ मिलता है। जिस पर ये लाइव डोज है, जिंदा रखते के, जैसे कि एक बीमार को ड्रिप पर जिंदा रखते हैं या वेंटिलेटर पर जिंदा रखते हैं, समझ लो ये कश्मीरी पंडित रिलीफ होल्डर उसी तरह आज जिंदा है, इस रिलीफ पर है, जो इस पर गुजारा नहीं कर सकता है, जो मांग करता है इस रिलीफ को बढ़ाया जाए। और जो एम्प्लॉयमेंट पैकेज है, भट्ट साहब ने कहा कि ये 2008 में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मनमोहन सिंह जी ने अनाउंस किया था। I will come to Mr. शाहजलाल जी, I will come on that later on। आप मुझे ये बताइए, आपने बोला कि राशन भी मिलता है, जैसे कि चावल, चीनी या आटा मिलता है, तो उनकी जो क्वालिटी है वो कैसी रहती है? क्या खाने लायक होता है वो आटा या चावल? बिल्कुल साफ नहीं होती, साफ नहीं होती है, खाने के काबिल नहीं होती। हम लड़ते हैं, हम बताते हैं कमिश्नर साहब को, वो भी करते हैं, मैसेज करते हैं, लेटर लिखते हैं, लेकिन तो भी साफ नहीं आता है, जो खाने के काबिल नहीं होता है। कभी जो रिजेक्शन है, जो मंडियों से रिजेक्ट होता है, वो आपको दिया जाता है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है, जिससे लोग मैं आपके वापस आऊंगा। अभी हमारे साथ एक मेहमान है, आशुतोष रैना जी। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, जो अमित शाह जी ने बोला कि 1990 में जब हमारा ये जिनोसाइड हुआ, जब हमको खदेड़ा गया अपने घरों से, जब हमको निकाला गया घरों से, जब हमको 3 चॉइस दी गई, गलियों गलियों सलियों, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इसमें कितनी सच्चाई है? राकेश जी, आपने मेरे को जो सवाल पूछा है वो तो बहुत ही फैक्चुअली, आई थिंक मैं ये कहूँगा कि फैक्चुअली इनकरेक्ट है, क्योंकि 1990 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी और वीपी सिंह की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे बीजेपी वाले। इवन दो आई माइट बी अ बिग फैन ऑफ मोदी एंड हिज ग्रुप, बट जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी स्पेसिफिकली कि गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, वो शायद कांग्रेस को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस he was responding to them, but factually उस टाइम पे विश्वनाथ प्रताप सिंह की गवर्नमेंट थी। 2 दिसंबर 1989 से आई थिंक दिसंबर 1990 तक वीपी सिंह was the Prime Minister of India. So obviously factually this was wrong what he said, and I would also like to say, जैसे मेरे बाकी सारे पैनलिस्ट कह रहे हैं, there have been mistakes. That mistake is not policy driven mistakes, because we know कि ये जो गवर्नमेंट है it's doing something. In our wildest of the dreams, ऐसे ललित जी ने कहा कि we would not have thought कि 370 हटेगा, हट गया, इस गवर्नमेंट ने ही किया वो भी। So policy driven decisions from the government, absolutely they might be doing what they have in their manifesto, बट ये जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं और जो इन्हें आंकड़े दिए हैं, इवन जो कांग्रेस थी, वीपी सिंह था, कौन था, जो सारी चीजें उनको, आई थिंक इट हैज बीन फेड, जैसे ललित जी ने कहा, इट हैज बीन फेड बाय द ब्यूरोक्रेसी एंड दे नीड टू बी टेकन टू टास्क फॉर दैट, बिकॉज अमित शाह हैज लॉस्ट फेस इन द पार्लियामेंट, नॉट ओनली इन फ्रंट ऑफ हिज मेंबर्स बट टू द एंटायर कम्युनिटी ऑफ कश्मीरी पंडित्स। तो मैं आप ही से अभी प्रारंभ करता हूं। जब सबसे पहले चारों लोगों ने अमित शाह के जो 4
जो इनकरेक्ट स्टैट्स दिए थे उनको हमने करेक्ट किया। अभी हमारे श्रोताओं को पता लग चुका है कि 44,000 लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा है, ये 19,000 से 20,000 के आसपास है। जब हमारा निष्कासन हुआ तब भारतीय जनता पार्टी सपोर्टेड गवर्नमेंट थी। तीसरा पार्ट, हर एक को 13,000 रुपए रिलीफ नहीं मिल रहा है, 3,200 से लेके 13,000 रुपए तक रिलीफ है। और चौथी बात, जो एम्प्लॉयमेंट पैकेज दिया था वो बीजेपी ने नहीं, वो यूपीए गवर्नमेंट ने दिया था। ये सबसे पहले वी हैव करेक्टेड दोस 4 पॉइंट्स। अब मैं वापस आशुतोष जी आपके पास ही आऊंगा, सिंस आई स्टार्टेड एट लास्ट विद यू। सो जो ये डिस्टॉर्शन हुआ या इसमें जो इसको बोलते हैं कि हाफ ट्रूथ जो ये स्पीच हुई वो अमित शाह जी की, इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या रीजन क्या हो सकता है? ये तो नहीं है कि उनको उनकी स्पीच किसी और ने बनाई थी, वो जल्दीबाजी में वही पड़ गए, या कुछ और? नहीं, देखो राकेश जी, लेट अस ऑल एग्री टू डिसएग्री ऑन कि उन्होंने, लेट्स एग्री ऑन दिस फैक्ट दैट उन्होंने जो कहा वो गलत कहा, दैट वाज नॉट फैक्चुअली करेक्ट। नाउ उन्होंने अपनी स्पीच खुद बनाई या नहीं बनाई, ऑब्वियसली वी ऑल नो, बीइंग प्रोफेशनल्स, जब आप पार्लियामेंट में खड़े होकर कोई स्पीच देते हो, इट इज डन बाय योर मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स। मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स के पास जो डेटा आता है वो ब्यूरोक्रेसी से आता है। Now, when I say bureaucracy, in this case, it will be Home Ministry का bureaucrats, and they would have got some data from the Jammu and Kashmir based bureaucrats. Now, अमित शाह ने खुद तो रिपोर्ट नहीं बनाई, डेफिनेटली नहीं बनाई, तो उनको ये रिपोर्ट दी गई है, and he read the report based on the trust on his lower rank officials, which is completely understood. But मेरी एक इंटेलिजेंस कह लो उसको, मेरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये है कि उन्होंने जो 44,000 का नंबर बोला है, that number is for not for the number of families which is getting it, but that is basically the number of people who are residing in Jammu. So that might be a distortion of facts in his report also. वो 44,000 is the number of people who are registered in Jammu, not the number of families who are getting the relief. So I think that the buck lies with him, because he is the home minister, he is standing in front of the parliament. But he now needs to go back to his team and get them to do the right thing now, which might be coming out with a statement that what he has said was based on some other facts, and the facts really are ABC. So he has to come with that. So now the debate is open. ललित जी, आप इसके ऊपर क्या बोलना चाहोगे कि यह रीजन क्या था ऐसे डिस्टॉर्टेड बयान देने का? देखिए, जहां तक फिगर्स की बात है, मैं बार बार कह रहा हूं, अभी जैसे जो रेजिस्टेंस है ब्यूरोक्रेसी की, चाहे वो जम्मू के अंदर हो, जम्मू कश्मीर के अंदर हो, या दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक के अंदर हो, मैं उनकी जो मानसिकता है, ये वो IAS ऑफिसर्स जिन्होंने JNU की बैकग्राउंड से, वो नहीं चाहेंगे कि आपको रिलीफ मिल जाए। वो हमको तब तक, शादी लाल जी पिछले 6 महीने से, मैं उनको फॉलो करता हूँ, 6 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं कि मतलब ये सेंस बनती है क्या? 13,000 रुपए, 104 रुपए दिन को आप दे रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो जिंदा रहे इंसान। 6 महीने से ये लोग उसके प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आज तक किसी ने, मुझे नहीं लगता कोई इनसे बात करने के लिए भी आया। तो इसके लिए मैं किसको दोषी मानूंगा? क्या मैं गवर्नर को बोलूंगा? गवर्नर जिसको मालूम नहीं है लल्ला कौन है, ललजत कौन है, लल्ला आरिफा कौन है, जब उनको इस परिभाषा का मतलब नहीं है, तो उनको शादीलाल जी की तकलीफ का क्यों पता चलेगा? ये गवर्नर आते ही बोलता है कि बस ये आप तो कश्मीरी पंडित जाने वाले हैं कश्मीर, मुझे फॉरेन से किसी का मेल आया हुआ, वो जम्मू, वो कश्मीर के अंदर एक स्कूल खोलना चाहते हैं। अगर ये अंडरस्टैंडिंग है जेनोसाइड को रिवर्स करने की, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी इजाद कहां से है। वही होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल, चाहे वो जम्मू कश्मीर के अंदर हो या दिल्ली के अंदर हो। लेकिन जहां तक ये जो पॉलिटिकल, अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम पॉलिटिक्स इसमें ना लाएं, ये क्योंकि इंट्रा कम्युनिटी है, बातचीत हो रही है, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारा जेनोसाइड जो है 19 जनवरी 1990 को शुरू नहीं हुआ, जब वीपी सिंह की सरकार थी। जेनोसाइड एब्रप्टली थोड़ी हुआ, कई अरसे से इसकी तैयारी हो रही थी। जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपनी किताब जो है, उसकी जो आतिश चिनार में लिखा कि कश्मीरी पंडित जो है वो दे आर 5th कॉलमनिस्ट ऑफ इंडिया। व्हाट डज दैट मीन? जेनोसाइड की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब आप एक जन समूह को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके प्रति नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं। और जब वो बोलते हैं ना आप ये 5th कॉलमनिस्ट का मतलब जानते हैं क्या होता है? 5th कॉलमनिस्ट होता है, पहले उन्होंने एक सेंटेंस में 2 चीजें बोली,
फिफ्थ कॉलमनिस्ट वो होता है जो किसी दुश्मन देश का एजेंट तुम्हारे देश के अंदर हो। इसका मतलब है वो उसने उस सेंटेंस के अंदर ये बताया कि उसका दुश्मन दोस्त है और कश्मीरी पंडित उसके उस दुश्मन दोस्त के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे। उसके बाद जो कश्मीर के अंदर जो हमारा बार बार पलायन हो रहा था, हमारा पलायन क्या 19 जनवरी को हुआ? पिछले 70 साल से दुर्भाग्य से जब से विलय हुआ है हिंदुस्तान का, जम्मू कश्मीर का भारत के साथ, तब से हमारा पलायन, नौकरी नहीं मिलती थी, प्रोफेशनल कॉलेज में जॉब नहीं मिलते थे, नौकरियां लिए प्रोफेशनल कॉलेज में सीट लेने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता था। तो ये लोग कोर्ट में जाए, मैं कोर्ट में नहीं जा पाया, मुझे बाहर जाना पड़ा पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे को वहां पर आराम से मेरिट होता था। तो इसके बावजूद मेरे कॉलेज में, मेरे क्लास के अंदर 3rd डिवीजन वाले को नौकरी वहां पे कॉलेज में सीट मिली, मुझे नहीं मिले, मेरे अच्छे नंबर थे। तो ये हमारी ये होती है परसिक्यूशन, जिनोसाइड के और फिजिकल असॉल्ट 19 जनवरी को आया। और तब सरकार किसकी थी? फारूक अब्दुल्ला की अलायंस किसके साथ थी? वो हमको भूलना नहीं चाहिए। और चाहे 19 जनवरी जो राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला का एकॉर्ड था वहां, तो इसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कांग्रेस के जो रियल कांग्रेसमैन है ना, वो भी जानते हैं कि गलतियां कब से कब तक चलती रही है। लेकिन आप इसीलिए इसको पॉलिटिकल रिटोरिक मत बनाइए, पॉलिटिकल रेंटिंग मत बनाइए। जो राष्ट्रभक्त है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, मैं कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी आंखों मैंने आंसू देखे जब उनको मैं बोलता हूं, जब मैं बात करता हूं किसी डिबेट के अंदर, क्योंकि वो जेन्युइन कांग्रेसमैन। तो इसलिए प्लीज आप इसको पार्टीकरण मत कीजिए। ये मत बोलिए कि उस वक्त किसकी सरकार थी, राजीव गांधी की थी। और हमको मालूम है, शादीलाल जी को याद होगा किस तरह से वोट डाले गए थे, कैसे वहां पे बताया जाता। कश्मीरी पंडितों ने वोट दिए थे क्या लास्ट इलेक्शन में? हमको आने ना, वो बूथ पे नहीं आने दिए थे, वोट दिया बटनी चोर वोट लो, ये बोला है ना वहां पे, बटनी वोट तुम सुने चोर वोट चुकरो मत कर। So please do not forget the political environment। और जो बीजेपी के जो वीपी सिंह के साथ था, it was a गठजोड़। ये तो वो तो वाजपेयी जी खुद बोलते थे जब वो खुद सरकार में थे कि भाई ये हमारा जो अलायंस का है, हमारे पास इसमें कठिनाइयां, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। उस अलायंस के दबाव में आके तो उन्होंने मुशर्रफ के साथ बातचीत आगे कर दी शुरू। तो प्लीज पॉलिटिक्स इसके हम अलग से डिबेट कर सकते हैं। आज का मुद्दा जिससे ये इसके फिगर्स के साथ, फैक्ट्स के साथ, ये बहुत जरूरी है और ये सरकार तक पहुंचाना आम सबका कर्तव्य है। नहीं तो ये रजिस्टर्ड हो जाकर हिंदुस्तान के लोग सोचेंगे कि हम उनके फेंके हुए टुकड़ों पे पल रहे हैं यहाँ पे। हम इसलिए नहीं, शादीलाल जी यहाँ नहीं बैठे क्योंकि उनको 13,000 रुपए मिलता है। जरूर कुछ ना कुछ पार्ट टाइम करते होंगे, कहीं ना कहीं नौकरी करते होंगे ताकि ये जिंदा रहे। 13,000 रुपए में कोई जिंदा नहीं रह सकता सर। उसके ऊपर बात करें ताकि सरकार तक ये बात जाए। और रिलीफ के लिए 13,000 कोई, आई टेल यू दिस इज 104 रुपए। अभी बच्चे का बोल रहे हैं 4 साल तक के बच्चे को 400 रुपए महीने के ऊपर जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ के बच्चे हैं? किसी पार्लियामेंट से पूछे किस हिंदुस्तान का कौन सा बच्चा इवन बिलो पॉवर्टी लाइन 400 रुपए पर महीने के ऊपर रहता है? तो प्लीज ये फिगर्स बहुत जरूरी है। हमारा एडवर्सरी सिर्फ हमारे जिहादी नहीं है जिन्होंने हमारा जेनोसाइड किया। हमारा एडवर्सरी हमारे हिंदुस्तान के अंदर है। खासकर ये जो ब्यूरोक्रेसी हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है, वो हमको मानते हैं, वो पंडित मानते हैं तो ये ऊंची जात के, इनको तो पूछो, गोली मार मरने दो इनको। तो इसलिए मैं बार बार कोशिश करने की बोलता ना, ये हिंदू का परसिक्यूशन हुआ, जेनोसाइड हुआ। और अगर कश्मीर में हिंदुस्तान फेल हो गया, 30 साल से कोई सक्सेस नहीं मिली उनको, अगर कश्मीर में हिंदुस्तान फेल हो गया तो हिंदुस्तान के कोने कोने में कश्मीर उभर के आएंगे। केरला में हो रहा है अभी, वेस्ट बंगाल में हो रहा है अभी। तो हम जो हैं, जब हम बोलते हैं कि हम हिंदुस्तान को जगा रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो हमारे साथ हुआ नहीं तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर होगा। और मेरा रिवर्सल सिर्फ मेरे साथ नहीं जुड़ा हुआ, मेरा रिवर्सल हिंदुस्तान के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ। हिंदुस्तान को अगर एग्जिस्ट करना है जैसा अभी है, अगर टुकड़े नहीं करने, टेरिटोरियल कंप्रोमाइज नहीं करने पड़ेंगे आगे से, तो उनको कश्मीर हमारी शर्तों पे रिजॉल्व करना होगा। ललित जी, थैंक्स फॉर योर कमेंट्स। ये आपका जो आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है और आपने जो रीजनिंग दी है, ये टोटली 101% करेक्ट। सो बिफोर दैट आई विल गो बैक टू द मिस्टर आर.के. बरसत। आप इस जो अमित शाह जी के भाषण को आप जो देखते हो, मैं यहाँ पे खाली मैं रूट कॉज निकालना चाह रहा हूँ। जो डिस्कशन का जो मेन रीजन है, इज नॉट ए पॉलिटिकल बट रूट कॉज की ऐसा क्यों हुआ, ताकि आइंदा ऐसा ना हो। और उससे पहले रादर देन दिस रिएक्टिव, लेट्स बी प्रोएक्टिव। और हम पहले से ही ऐसे चीजों में काम करें ताकि ऐसा कुछ ना हो। तो ऑन दैट नोट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या रीजन हो सकता है जिसके कारण अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में डिस्टॉर्टेड फिगर्स प्रेजेंट की? दो बातें आपको इस अमित शाह के स्टेटमेंट पे मेरी दो सोचें हैं।
एक सोच है कि इसमें बाय एंड लार्ज किसी को कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है कि अमित जी का जो भाषण आया, जो फिगर्स आ गए, वो फैक्ट्स नहीं है, वो उनके फिगर्स में कोई सच्चाई नहीं है। ये बाय एंड लार्ज सबने कहा और दिस इज ट्रू आल्सो। और नंबर 2, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, कश्मीरी पंडित का जो जेनोसाइड है, कश्मीरी पंडित की जो त्रासदी है, कश्मीरी पंडित का जो यूनिक प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड में, आप इसको एक होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट से यहाँ फुल स्टॉप न करें। क्या हम ये कहते हैं कि जो होम मिनिस्टर साहब ने बयान दिया उससे हमारी 30 साल की बल्कि 50 साल की त्रासदी खत्म हो जाएगी? ये हमें अप्रूव किया गया टेररिज्म से, उसको वहां पे विराम लग सकता है? ये कतई नहीं होगा। ये इतिहास गवाह है कि हमारे कम्युनिटी के साथ क्या हुआ। ये पहली बात है। मैं इसलिए इस स्टेटमेंट को ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन हमारी इस बात की भी मंशा साफ जाहिर होती है, हम तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं चाहे कोई भी गवर्नमेंट। We are not representing any government. At least I am not representing, nor I am the member of any political party. I am the member of my community. I am the respectable member of this union, this nation. उस कैपेसिटी में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कश्मीरी पंडित जो है, मैं अपने लोगों से, अपने लीडर साहिबान से, जैसे ललित जी कह रहे थे मैं लीडर हूं, हम कोई लीडर ना हो सकते हैं, क्योंकि कश्मीरी पंडित को लीडर बनने का, ये लीडर बन ही नहीं सकता, ना इसको लीडर बनने का कोई शौक है। हम सब एक्टिविस्ट हैं, हम सब अपने कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत करना चाहते हैं, लेकिन हमारी एक प्रॉब्लम जो हमें ठीक करने की जरूरत है, चाहे हम अमेरिका से बात करें या कश्मीर वैली में बात करें, हमारी डिफरेंस बेशक हो, लेकिन बात हमारी एक हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो कोई भी ब्यूरोक्रेसी में बैठा हो। मुझे उस टाइम परेशानी मन में आ जाती है जब यह कहा जाता था कि हम कश्मीर क्यों गए नौकरी के लिए, हम जम्मू में या कहीं क्यों नहीं कर रहे। इससे मुझे 2 तकलीफ होती है। एक तकलीफ ये होती है, अगर 4000 लोग कश्मीर गए, 25,000 जाने को तैयार है, तो ये बात कह के मैं उनकी इंसल्ट करता। दूसरी बात, हमने कभी ये नहीं कहा कि ये हमारा रिटर्न हो, ना हम इसको कहेंगे। ललित जी ने कहा कि आप जम्मू में क्यों रह रहे हैं, ये सच है, क्योंकि मेरा रिटर्न कश्मीर के लिए नहीं हुआ। मैं आज भी कश्मीर जाता रहता हूँ, मैं 6 महीने वहां रहता हूँ, 6 महीने जम्मू में रहता हूँ, 6 महीने प्रोफेशन के साथ उधर इधर भागना पड़ता है। बट आई एज ए पर्सन वकालत करता है कश्मीर जाने के लिए, तब भी करता था, आज भी करता था। मैं आज 12 साल के बाद खुशी महसूस करता हूं कि जो हमने मार्गदर्शन रेजोल्यूशन 2010 में दिया वो अच्छी ओर बढ़ रहा है। हमें उसको स्ट्रेंथन करना, उसमें कमियां और खामियां बहुत है, मैं मानता हूं, लेकिन हमारे पास शादीलाल जैसे, ललित जैसे, आज जैसे, आप संजय गुंजू जैसे कितने हजारों लोग हैं जो हम उन कमियों को दूर कर सकते हैं, न कि उन कमियों को अपने पिटी इंटरेस्ट के लिए एक्सप्लॉइट करें। मैं आप सब लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं कि कश्मीर वैली जाने के लिए जो हमारे बच्चे गए, जो हमारे बहनें गई है, वो वहां तकलीफ में है, मैं मानता हूं। उनको वहां बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल नहीं है, उनको वहां रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है, वो आज भी फार फ्लंग एरियाज में रेंटेड पे रह रहे हैं। तो हमें उनको अपना एम्बेसडर मानना है, हमें उनके लिए चलाना है, जैसे शादीलाल जी हमारे एक सेक्शन के लिए चला रहे हैं, हमें उन बच्चों के लिए चलाना है। क्या पता कि वो जो हम उनको स्ट्रेंथन करें आने वाले टाइम पे, वो हमारे लिए एक रिटर्न का मॉड्यूल बन सकता है, हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप लोग, हम सब लोग इन बातों को डिबेट करें। देखिए, सब चीजें कम है, रिलीफ पूरा नहीं है, नौकरियां 4000 से कुछ नहीं होगा, 15,000 लोग तैयार हैं। ओवर एजेड सेक्शन जिनको असली विक्टिम ऑफ द माइग्रेशन बनना पड़ा, ना उनको अच्छी पढ़ाई के स्कूल मिले उस टाइम, ना उनको अच्छे घर मिले, उनके पास कुछ भी नहीं था, स्टिल उन्होंने थोड़ा बहुत किया। लेकिन अगर उस टाइम भी जितने मार्गदर्शन का बने, अगर उन मार्गदर्शनों में सर्वाइवल की बात को नजरअंदाज नहीं किया गया होता, तो 4000 लोग जो कश्मीर में है या 15,000 जाने के लिए तैयार है, वो आपके उस मार्गदर्शन को रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो भट्ट साहब जी, थैंक यू फॉर योर नाइस कमेंट्स। सो आई वुड रिक्वेस्ट, जो बोल नहीं रहा है वो म्यूट पे जाए, जिसको, ताकि डिस्टर्बेंस थोड़ा बहुत मुझे दिख रहा है यहाँ पे।
So now I will move to शादीलाल जी. शादीलाल जी, आप हमको बताइए कि आप क्या देखते हो इसको, जो अमित शाह जी ने जो भाषण दिया, जो उसमें उन्होंने इनकरेक्ट फिगर्स का जो बखान किया, इसके पीछे आप रीजन क्या देखते हो? व्हाट इज द मेन कॉज? क्या ये जो जैसा कि ललित जी ने बोला कि ये स्टेट की ब्यूरोक्रेसी है, आशुतोष राणा जी ने भी वही बोला, तो आपको क्या लगता है कि ये सच्ची में ये स्टेट की ब्यूरोक्रेसी है? जहां पे मुझे पता है एज ऑफ नाउ जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी विंग में मोर देन 50% कश्मीरी हिंदूज है, कोई जनरल सेक्रेटरी में है, कोई किसी पोजीशन पे है. तो अगर इसके बावजूद अगर हमारे रिप्रेजेंटेशन एक पॉलिटिकल पार्टी में एक स्टेट लेवल पे इतनी ज्यादा है, उसके बाद भी उस कल्चर को, उस कम्युनिटी को टोटली बुला दिया जाता है, ये कहां तक ये न्याय है और कहां तक ये सही है? इसके बारे में आपका क्या कहना? राकेश जी, मैं ललित जी से कहना चाहता हूँ, नाराज ना हो जाए, क्योंकि जब भी बीजेपी की सरकार नहीं थी हमने भी बहुत मेहनत की है, चाहे मैं किस पार्टी से हूँ किस पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन हम भी चाहते थे बीजेपी आनी चाहिए. लेकिन दुख की बात है, जो बीजेपी वाले पहले से कहते थे कि हमारी हुकूमत आएगी, हम कश्मीरी पंडितों को सब कुछ करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, इनको कांग्रेस गवर्नमेंट ने उस वक्त उखाड़ कर फेंका वहां से, क्या नहीं कहा. खैर, अपने वोट के लिए क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम उसके खिलाफ नहीं है. लेकिन दुख की बात है, एक फिर से बताऊंगा, एक होम मिनिस्टर साहब को ये जानकारी नहीं होगी कि कितने लोग कश्मीरी पंडित रिलीफ लेते हैं. ये बहुत बड़ी दुख की बात है. और किन्होंने उनको ये इंफॉर्मेशन दी? जम्मू बीजेपी वालों ने या सेंट्रल बीजेपी वालों ने या संघ वालों ने? कौन सी इंफॉर्मेशन थी? जिनके पास हर एक इंफॉर्मेशन होती है और सही होती है, लेकिन ये क्यों गलत बताई गई? एक होम मिनिस्टर को ऐसा कहना बिना सोचे समझे, एक सैलाब आया हमारी कम्युनिटी में कि क्या बता रहे हैं हमारे होम मिनिस्टर साहब, जिनको ये जानकारी नहीं है कश्मीरी पंडित कितने रिलीफ लेते हैं और किस मुश्किल में है, किस हालात में है. बहरहाल, जो पहले से ये कहते थे, हम इनसे वही गुजारिश करना चाहते थे और करते भी हैं. आप जो कहते थे जरा वो कर लो, आपकी सरकार है, आप मेजॉरिटी में है. पूछना नहीं था आज आपको किसी से, आपको टोकने वाला भी नहीं था कश्मीरी पंडितों के बारे में. अगर आप कश्मीरी पंडितों को इस वक्त आबाद करते, कश्मीरी पंडितों के लिए इस वक्त कुछ करते, लेकिन क्या नहीं कुछ. हमें लगता है कि झूठ बोल दिया, हमारे साथ भी झूठ बोला. हम कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस जाने के लिए तैयार है, लेकिन यही सरकारें जो रास्ता नहीं देती है. हम कश्मीर हमारी मातृभूमि है, हमें जीना कश्मीर का एक क्यों हम छोड़ेंगे? हमें कश्मीर का शादीलाल जी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा. यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है मिस्टर गंजू, एक छोटा सा पॉइंट. हाँ बोलिए सर. हाँ सर, ऐसा है, मैं शादीलाल जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि बीजेपी के साथ इनको शिकायत है, लेकिन ये ना सोचे कि यहाँ पे कोई किसी पार्टी का समर्थन कर रहा है, क्योंकि हमने जितना इनको बरखलाफी की, जब ये महबूबा मुफ्ती के साथ संगठन था इनका, हमने हर प्रवक्ता को मुंह बंद कराया, जो शुक्र है उसकी वजह से हुआ. मुसीबत कहां पर है? जो जम्मू कश्मीर का जो इनका बीजेपी का दड़ा है, जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, सारे कश्मीरी पंडित उसके अंदर है, वो कश्मीरी हिंदुओं को नजरअंदाज कर रहे हैं और जम्मू के डोगरा लोगों को भी नजरअंदाज कर रहे हैं. 100 नौकरियां निकलती हैं, 80 कश्मीर की होती है, 20 जम्मू की होती है, क्योंकि राष्ट्रवादी लोगों का अभी तक वही ट्रीटमेंट, नेग्लिजेंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है जिसमें कश्मीरी पंडित है. तो ये बिल्कुल सही है. इवन आरएसएस का जो दड़ा है, जो लोकल दड़ा है, जिन्होंने अभी एक नया स्लोगन दे दिया है, जो इकबाल जिसने हिंदुस्तान का विभाजन किया, कि वो कहते थे राम को पैगंबरे हिंद, वो अभी बीजेपी का जो लोकल जो आरएसएस का जो दड़ा है, जो जम्मू कश्मीर को कई बरसों से देख रहा, वो भी वही इकबाल की आवाज में बोलने लगे पैगंबरे हिंद राम के नाम से, क्योंकि उनका मुस्लिम राक्षस वो जो दल है, मुस्लिम संगठन जो है आरएसएस का, उसको संगठन करने का. तो ये जो पॉलिटिकल एम्बिशंस है, ये जो पॉलिटिकल व्याख्या है कि हम उनको जीत सकते हैं, अरे जो तुमसे नफरत करते हैं, जो टू नेशन थ्योरी पे विश्वास करते हैं, जिन्होंने पिछले 70 साल से कश्मीर के अंदर टू नेशन थ्योरी को जिंदा रखा, वो तुम्हारे मित्र नहीं हो सकते. लेकिन जहां पे उसी समाज के अंदर लेफ्टिनेंट फयाज जैसे लोग हैं, औरंगजेब राइफलमैन औरंगजेब जैसे लोग हैं, उनको तो उतारने की कोशिश कीजिए, ना कि उन्हीं को जो देश को बांटना चाहते हैं.
अभी जैसे आप बता रहे थे मेरी सिक्योरिटी जो जेनोसाइड हुआ नौकरियों से नहीं वापस होती सर, इसको कंटेस्ट करना है। फिगर्स तो कंटेस्ट करने ही कर रहे हैं, ये कंटेस्ट करना कि अगर आप समझते हैं कि 10,000, 15,000, 20,000 नौकरियां देके कश्मीरी हिंदू का नरसंहार आप रिवर्स कर सकते हो, नहीं हो सकता है। आज की तारीख में कोशिश हुई, उन्होंने तो भट्ट साहब कह रहे थे कि उस पैकेज के अंदर ये भी एक था कि आप को मकान बनाने के लिए आपको 22 लाख रुपए देंगे। कितने कश्मीरी पंडितों ने अडॉप्ट किया? ऑफिशियल फिगर एक फैमिली ने वो अडॉप्ट किया। तो इसका मतलब है जो नौकरियां, जो बच्चे नौकरियां वहां पे कर रहे हैं, मजबूरी है। आप मेरी मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि मेरा परिवार जम्मू के अंदर है, नौकरी में कश्मीर में कर रहा हूं क्योंकि मुझे चाहिए, मुझे मालूम है। और मैं बताना चाहता हूं, मैं ये मत सोचें कि मैं दिल्ली में रह रहा हूं, मुझे उन लोगों के साथ कांटेक्ट है। हम में से कई लोग काम कर रहे हैं उनके साथ कम्युनिकेशन में, जिनके घर में 2 रोटी बनना मुश्किल हो रहा है। उनकी बहुत मजबूरी है। जो ये शादीलाल जी अच्छी तरह से जानते होंगे, इनके कैंप के अंदर लोग हैं, उनकी मजबूरी हमको जरूरत है। ये मत सोचिए कि हमारे कई बच्चों ने जिंदगी में बहुत अच्छा स्थान प्राप्त किया तो इसलिए सब लोग ठीक है। हमारे परिवार के, हमारे समाज के अंदर बहुत गुर्बत है। प्लीज ये याद के रखिए कि हमारे यहाँ गुर्बत है, उसका नाजायज फायदा हम किसी भी सरकार को, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस को, नहीं उठाने देंगे। हम लोगों का जेनोसाइड का निवारण ऐसे नहीं होगा। ट्राइब्यूनल बैठेगा जब तक एक रेप, एक मर्डर, मास मर्डर के लिए जो मुनव्वस है, चाहे वो जिंदा है या मुर्दा है, जब तक उनको जस्टिस के तख्ते पर नहीं लाया जाएगा तब तक कश्मीरी हिंदू का जेनोसाइड नहीं होगा। और इस सरकार से हम सबको अक्रॉस पार्टी लाइन, बीजेपी से डिमांड कीजिए कि आप बोल रहे हैं कि जेनोसाइड हुआ, लेकिन आप औपचारिक तौर पे बोलिए, ऑफिशियली बोलिए, एक्नॉलेज कीजिए कि कश्मीरी हिंदू के साथ जो वो जेनोसाइड है। एक बार वो करेंगे ना, तब आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान को जेनोसाइड की जो यूएनओ की जो परिभाषा है उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यूएनओ फॉलो करेगा कि अगर आप एक सरकार, एक जिम्मेवार सरकार अगर ये घोषणा करती है कि इस समुदाय के साथ जेनोसाइड हुआ, तब आपको यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ जेनोसाइड फॉलो करना पड़ेगा, आपको ट्राइब्यूनल बिठाना पड़ेगा। आप भेड़ बकरियों की तरह हमारी मजबूरियों का फायदा उठा के हमको वहां पे धकेल के वापस नहीं भेज सकते। प्लीज ये सब ध्यान रखिए। इसमें पार्टी का नहीं, आप कोई भी पार्टी को यहाँ पे तरफदार नहीं हो सकता। और जब मैं पार्टी की बात करता हूं, मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है और मेरे लिए कश्मीर इसलिए ही ज्यादा प्रथम है क्योंकि अगर मेरे साथ ये हुआ कि हिंदुस्तान में कई कश्मीर और पाकिस्तान बनने वाले हैं, ये मान के चलना पड़ेगा और मुझे हिंदुस्तान का 130 करोड़ साथ लेके रखना है। वो मेरे लिए मेरी आवाज उठाना चाहिए। तो यहाँ पे थैंक्स ये ललित जी फॉर रिस्पॉन्डिंग, थैंक्स शादीलाल जी फॉर रिस्पॉन्डिंग। अभी हम एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम अपने श्रोताओं के कुछ क्वेश्चन आंसर है उनका हम रिप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी विल बी बैक, स्टे ट्यून्ड विद अस, वी विल बी मीटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। नमस्कार मित्रों, मैं राकेश गंजू, आपका होस्ट और दोस्त, लोटस वर्ल्ड के स्पेशल कार्यक्रम 10th वर्सेस पार्लियामेंट में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आज हम डिस्कस कर रहे थे श्री अमित शाह जी के उस भाषण पे, जिन्होंने कुछ चंद चीजें उसमें जो इनकरेक्ट बोली, उनके फिगर्स को हमने आज करेक्ट करने की एक चेष्टा की, एक प्रयास किया। अब हमें पता करना है कि ये प्रयास कितना सफल होगा हमारा, और हमारी बात अमित शाह जी के पास पूछेगी कि नहीं। अभी हम इस कार्यक्रम के लास्ट सेशन में पूछे हैं, जहां पे हम अपने श्रोताओं के प्रश्न लेंगे और हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो उस प्रश्न का उत्तर देंगे। यहाँ कोई भी जंप करके उसका आंसर दे सकता है। सबसे पहले मेरे पास जो प्रश्न आया है वो आया है मिस्टर विपिन काचरू से। विपिन काचरू जी बोल रहे हैं, our community has suffered a lot and now is a time to come to this end. How long our community will hold RG ration cards?
हमारी कम्युनिटी आरजी राशन कार्ड कब तक होल्ड करेगी? आई थिंक शादीलाल जी विल बी द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए सर, हम इसको राशन जो रिलीफ जो मिलता है, पहली बात, सॉरी इंटरप्ट, आप ये हमारे दर्शकों को बताइए आरसी राशन कार्ड होता क्या है? ये तो कभी राशन कार्ड एक राशन कार्ड रहता, तो ये आरजी का वर्ड कहाँ से डाला गया? कश्मीरी पंडितों के लिए ये आरजी रखा है, यानी आरजी है, ये टेम्पररी है, टेम्पररी है, ये टेम्पररी है। इसके बजाय हम विद इन वन स्टेट आरजी कैसे हो सकता है? चलो मैं मानता हूँ अगर दिल्ली में मेरा राशन कार्ड आरजी बन सकता है बिकॉज तब 370 था, लेकिन विद इन स्टेट 317 कोई इश्यू नहीं था ना। मेरा राशन कार्ड जम्मू में बने या कश्मीर में बने, मैं तो जम्मू कश्मीर का निवासी हूँ, तो वहां पे गवर्नमेंट ने ये टर्मिनोलॉजी निकाल के ये क्या प्रूव करने का प्रयत्न किया? यही तो नाइंसाफी है कश्मीरी पंडित से। ये कहते आए हैं आज तक कि कश्मीरी पंडितों की आबादकारी कश्मीर में कर लेंगे, आरजी इसीलिए रखा है। पता नहीं है पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है, हमें आरजी रखा है यहाँ भी वहाँ भी। इसीलिए मेरे समझ में यही आया है, हम इसीलिए हमारा राशन कार्ड इसीलिए आरजी है। पैसे तो काफी आते हैं, हमारे नाम पर काफी पैसे आते हैं। अगर इसमें सर्वे किया जाएगा कि कितना पैसा आज तक 1990 से आज तक हमारी रिहैबिलिटेशन पर दी गई है, आबादकारी पर दी गई है, और वो आबादकारी कहाँ हुई है और किस कश्मीरी पंडित को कितना पैसा मिला है, इसीलिए टेम्पररी रखा है। हमें ना इधर का रखा है ना उधर का रखा है। हम गवर्नमेंट से बार बार कहते हैं हमें परमानेंट रिहैबिलिटेट करो। हमारी प्रॉपर्टी का लॉस 1 साल का, जमींदार का, जो लैंडलॉर्ड है, जो बिजनेसमैन है, जो शॉपकीपर था, जो गाड़ी वाला था, वहां अपनी बिजनेस कर रहा था, हर 1 साल का 4 लाख रुपया हमने मिनिमम बनाया है जो एक फैमिली का हो रहा है। हम सरकार से कहते हैं हमें ये 31 साल का लॉस दीजिए और हमें कश्मीर में बसाए, ये आरजी राशन कार्ड इसको खत्म किया जाए। लेकिन तब तक ये राशन रिलीफ सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि रिलीफ होल्डर इसी राशन रिलीफ पर जिंदा है। अगर ये बंद हो जाएगा, मर जाएगा, नहीं रहेगा, जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए हम सरकार से पूछना चाहते हैं कब तक आप हमारी आबादकारी करोगे और हमें कश्मीर में रहना है। जम्मू हमारी मातृभूमि, जम्मू हमारी रणभूमि है और कश्मीर हमारी मातृभूमि है। हमें कश्मीर में बसाया जाए। जहाँ एक इसको ऐड करना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है, ये जो आरजी मींस टेम्पररी, ये विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन है हिंदुस्तानी साइकी के अंदर, हिंदुस्तानी पॉलिटिकल साइकी के अंदर। एक तरफ से तो बोलते हैं ये लोग माइग्रेंट हैं, और माइग्रेंट का लिटिल मतलब ये होता है कि अपनी मर्जी से ये लोग अपने खुशहाली के लिए वहां से निकले हैं। दूसरी जगह हमारा जो राशन कार्ड है उसके ऊपर टेम्परेरी शब्द लगा रखा है, क्योंकि भैया ये आज आए, इनको कल वापस जाना है, ठीक है। और यही This is the contradiction that is leading to this kind of confusion and wrong policies. ये सोचते हैं कि इनको हमने टेम्परेरी बिठा के रखा हुआ है, दुनिया को नहीं बताया इनके साथ जेनोसाइड हुआ, और आज इनको मैं कुछ भी देता हूं, क्योंकि ऐसी हालत हो गई सर। अभी मेरे समाज के अंदर कई लोग ऐसे हैं, ये लोग कह रहे हैं टेम्परेरी, वो सड़क पे कश्मीर के अंदर जाने के लिए, बैठने के लिए तैयार है। जो घर उसका उजाड़ दिया गया है, उस घर के बाहर बैठने के लिए तैयार है, अगर उसको रोटी का कोई तरीका मिल जाए। और लेकिन ये भी साथ में बोलता हूं, मैं अपनी कम्युनिटी का जो डिग्निटी, the understanding of dignity जो आज तक हमने दुनिया भर में रखी हुई है, उसका नमन करता हूं। हमने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, हमने भीख नहीं मांगी। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है विश्व भर में। इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्संस हैं, जेनोसाइड के सर्वाइवर्स हैं, दुनिया में कहीं आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। इसलिए उसका हमें गर्व है। शायद इसी वजह से ये लोग हमें दे टेक फॉर ग्रांटेड, ये कश्मीरी पंडित तो भीख नहीं मांगेगा, ये वायलेंस नहीं करेगा, इसलिए इसको हम टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं। जो हिंदुओं के प्रति सारी सरकारों की यही एटीट्यूड होता है। तो ये टेम्परेरी शब्द वैसे ही टेम्परेरी शब्द हो रहा है जैसे 370 टेम्परेरी था। पिछले 70 साल से वो टेम्परेरी शब्द का नाजायज फायदा ये हो गया था जो परमानेंट बन गया था। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हमारे नाम से जो टेम्परेरी शब्द जोड़ा गया है इसको परमानेंट ना बनना दे। जो जेनोसाइड की जो प्रक्रिया जो वापस करनी की है, हमें कश्मीर में जाना है, एक जगह पर रहना है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करनी है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करनी है, उसके लिए हमें सरकार के ऊपर रोज समीक्षा करनी है। बीजेपी सरकार, मोदी जी का 5 साल के बाद वेट नहीं करूंगा मैं उनकी समीक्षा हर दिन करूंगा, हर मिनट करूंगा कि आपने जो प्रॉमिस किया है वो किया कि नहीं। इसलिए सबसे अपील करता हूं, शादीलाल जी फ्रंट के ऊपर है, ग्राउंड के ऊपर है, प्लीज समीक्षा कीजिए, लेकिन एक रिक्वेस्ट के साथ, एक रिक्वेस्ट का राजनीतिकरण मत कीजिए, ना करने दीजिए किसी पार्टी को हमारी व्यवस्था। हम भारतीय हैं, भारतीय के नाम से हमारा जेनोसाइड हुआ और भारतीयता के नाम से वापस जो हमारे साथ है हम उसका अभिनंदन करते हैं।
मिस्टर भट्ट साहब, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो आरजी राशन कार्ड जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई बाद में हम, लेकिन वोट तो अभी भी कश्मीर के लिए देते हैं, तो हमको ये हक नहीं दिया गया कि आरजी राशन कार्ड बनाया है तो एक आरजी पीपीआईसी बनाना होना चाहिए था हमारे लिए, जिसके तहत इधर एक स्पेशल आरजी एक कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली की क्रिएट हो, या हमें जम्मू के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वोट हम दे सके। ऐसा कुछ किया नहीं है। तो ये आरजी राशन कार्ड और परमानेंट इलेक्शन कार्ड, ये क्या है? इज इट कंट्राडिक्शन कि ये क्या? देखिए, जो हमें ये आरजी राशन कार्ड दिया गया है, फंडामेंटली जो हमारी आइडेंटिटी इन्होंने बनाई है आफ्टर डिस्प्लेसमेंट, उसका नाम रखा है माइग्रेंट, जो फंडामेंटली इनकरेक्ट है। जब आप माइग्रेंट वर्ड को चैलेंज करेंगे तो आरजी राशन कार्ड आप बस आपसे हमारा संपर्क टूट गया है लगता है। बस आप कम गए। हाँ, मुझे आपसे यह कहना है कि ये माइग्रेंट शब्द को हमें चैलेंज करना है। माइग्रेंट वर्ड जब हम चैलेंज करेंगे तो टेम्परेरी रेशन कार्ड अपने आप उसका सोल्यूशन आ जाएगा। और दूसरी बात, जो ये हम बार बार देखिए, जितनी भी सरकारें अभी तक आई है, हमें इन बातों को, इन आंकड़ों पे भी बात करनी चाहिए कि जो हमारे फंड सिक्योरिटी फंड्स और वहां से इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 16 से 18 करोड़ रुपए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस टाइम सैंक्शन किया था, जो कश्मीरी पंडित, उन्होंने रिलीफ और बाकी चीज के लिए, इवन अगर हम प्रेजेंट गवर्नमेंट की भी अभी बात करें, जब फाइनेंस मिनिस्टर पहले के, तो उन्होंने भी 2000 करोड़ रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में रखा ईयरमार्क करके, उसके बाद 1000 करोड़ रुपए रखा। ये प्रॉपर हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक आरटीआई करी थी कश्मीर के 10 डीसीज को, क्योंकि वो हमारे कस्टोडियन हेड है। तो हमने ये डिमांड रखी थी कि जो वेलफेयर होता है आपके लोगों का, जो यहाँ पे वोट पोल करते हैं, जिनकी डेवलपमेंट आप करने का अधिकार है, आप बताइए स्टेट पेमेंट से, स्टेट एक्सपेक्टेड जो पेमेंट्स होती है वो कितना यूज हो गया है माइग्रेंट की वेलफेयर के ऊपर। तो पता लगा कि उन्होंने 1 रुपया भी 30 साल में हमारे ऊपर खर्चा नहीं किया। जो खर्चा हमारे ऊपर हुआ पिछले 30 साल में, चाहे नीट में, नौकरी में या कहीं में भी, वो सारा पैसा भारत सरकार से आ रहा। अगर ये सारा पैसा भारत सरकार से आ रहा, फिर हमारी स्टेट जो हमारी जम्मू कश्मीर क्या वैल्यू है? कभी किसी ने इस पे बात की? हम अगर यहाँ के रहने वाले हैं तो हमारी डेवलपमेंट क्यों नहीं होती है? और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, जैसे इस बात को आपने भी छेड़ा, यहाँ पे 30 साल से हम अपना वोट डाल रहे हैं। जब जम्मू में किसी को जिताना होगा, वो कश्मीरी पंडित फैसला करता है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हमें आज भी कश्मीर के लिए वोट डालना पड़ता है। जब हम वहां के एमएलए को चुनते हैं, वहां के लोकल बॉडीज को चुनते हैं, वो हमारी डेवलपमेंट नहीं करते हैं, हमें खाली उनको चुनना पड़ता है। डेवलपमेंट में यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा, यहाँ पे मैं आपसे ये पूछूंगा, जैसे कि जगती टाउनशिप है, वो नगरोटा के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आती है। आपने वोट डाला बारामूला के लिए, आपने वोट डाला श्रीनगर के लिए, आपने वोट डाला कुपवारा के लिए, लेकिन जब आपको पानी चाहिए, जब आपको सेफ्टी चाहिए, आपको नगरोटा के एमपी के एमएलए के पास जाना पड़ता है। तो वहां पे हाउ यू जस्टिफाई दिस कि भैया वोट, आप तो मेरे वोटर नहीं हो, तो मैं आपकी हेल्प क्यों करूं? देखिए, हमें इस बात को समझने की बहुत जरूरत है कि ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये कश्मीरी पंडित को एक्सप्लॉइट करते हैं, इसकी माइग्रेंट डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं फॉर देयर पॉलिटिकल पेटी इंटरेस्ट्स। दिस हैज बीन डन विद अस राइट फ्रॉम डे वन। ये नहीं कि किसी ने किया। अब देखिए, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री तत्काल और अभी के जम्मू आते हैं, इन्होंने मैनिफेस्टो में कश्मीरी पंडित की रिटर्न पाई की है। भाई, आपने इसका रोड मैप क्या बनाया? किसी से डिस्कस हुआ? आप किससे डिस्कस करके ये फैसला करते हमने कैसे किया? ये तो ताजुब की बात है जब स्टेट के एलजी साहब ने ये बयान दिया कि हम इनके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं और 6000 लोगों को हम तुरंत वापस जा रहे हैं अपने घर में और बस से जा रहे हैं। हम तो इसकी निंदा करते हैं, हम तो कभी इसके साथ भी नहीं है। मैं ललित अमरदास जी के स्टेटमेंट को पूरा सहयोग देता हूं कि एक भी परिवार रिटर्न के नाम पे कश्मीर नहीं गया और न आज भी हम जाएंगे। हम तब जाएंगे जब रिटर्न का मॉड्यूल हमारे से
टाइप किया जाएगा। अगर हम एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं जाते तो हमारे कनेक्ट जो हमारे रूट्स है वो हमारे से धीरे धीरे कनेक्ट। देखिए फिलॉसफी में डिस्कशन आप कुछ भी कर सकते हैं, इमोशनली यू कैन मोटिवेट मी लाइक एनीथिंग, बट यू हैव टू लिव अ प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ इज जब एक एम्प्लॉय कश्मीर के पेरोल पे आया, वो अपनी कम्युनिटी को 50 साल आगे लेके चलेगा। अगर वो उस पेरोल पे नहीं होता, बॉम्बे, अमेरिका या कहीं देश कश्मीर से बाहर चला जाता, तो वो अपनी कम्युनिटी को ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रख सकता है। सो दैट वाज द ओनली रीजन उस टाइम हमने सोचा कि ये नौकरी कश्मीर में हो, बेहतर हम जाएंगे। इसलिए इन चीजों को प्रैक्टिकली बहुत चीजों को बारीकी से हमें देखना पड़ेगा। हमें कंपटीशन डिबेट में नहीं रखना चाहिए, हमें कंपटीशन लैंग्वेज में नहीं रखना है, हमें कंपटीशन रखना है प्रैक्टिकली हम कितना अचीव करते हैं। और ये एक अचीवमेंट थी जो आपने बोला, जैसे भी तरीके से बस रहे हैं, और उम्मीद है उस से जो फर्स्ट स्टेप है हमारा टुवर्ड्स रिटर्न, दैट विल अल्टीमेटली लीड अस फॉर आवर कॉम्प्रिहेंसिव रिटर्न टू कश्मीर वैली। थैंक्स भट्ट साहब। मैं आपको आपने जो बोला उस पर खाली एक ही सेंटेंस ऐड करना चाहूंगा। एक फेमस गाना है, हिंदी गाना कश्मीरियों वाला, उसमें बोला गया है कि हम वादी के असली दावेदार हैं और अपने शर्तों पे ही अपने घर जाने को तैयार हैं। तो ऑन दैट नोट कि अगर हमारी घर वापसी होगी तो हमारी अपनी शर्तों के ऊपर होगी। कोई दिल्ली में बैठा हुआ बंदा हमारी घर वापसी का रूपरेखा लिखेगा नहीं। ललित जी आप कुछ बोल रहे हो? आप म्यूट पे हो, दलित जी आप म्यूट पे हो। सॉरी, मैं मिस्टर भट्ट को ये थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि हम जितने रिफ्यूजी हैं, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, जितने भी कश्मीरी हिंदू रिफ्यूजी किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से रखते हो, लेकिन दुनिया में कहीं पर भी हैं, उन्होंने अपने आप को, ये देखिए मैं यही कह रहा हूँ, 30 साल से जो हम अभी जुड़े रहे ना, ये जेनोसाइड का आपने एक एस्पेक्ट उसको डिनाउंस किया, उसको डिफाई किया कि 30 साल के बाद भी कश्मीर की आग जो ना हमने रखी है। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे, आप 2 लोग हो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो, क्यों आप टाइम इतना लगा रहे हो कश्मीर के ऊपर? आप तो ऑस्ट्रेलिया में हो, अच्छी जिंदगी जी सकते हो, क्या पड़ी आपको शादीलाल जी से और ललित के साथ और भट्ट साहब के साथ बात करने की? आप रहो ना वहां। ये मत सोचिए कि कश्मीरी हिंदू जहां जहां दुनिया में है, जिस तरीके से जो उसकी हैसियत है, किसी ना किसी तरीके से उसने कश्मीर को अपने दिल के अंदर जिंदा रखा है, हिंदुस्तान के लिए उसको जिंदा रखा है आज की तारीख में। तभी आज की इस दुनिया में दिल्ली के अंदर कोई भी सरकार हो, कश्मीर को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। दुनिया में कश्मीर के ऊपर कहीं पे भी डिबेट होती है, वहां पे कश्मीरी पंडित जरूर होता है, कश्मीरी हिंदू जरूर होता है। ये हमारी 30 साल की पूरी मेहनत है, इसको नजरअंदाज मत कीजिए। चाहे वो जम्मू में बैठने वाले जेनोसाइड के सर्वाइवर्स हो, दिल्ली में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, यूरोप में हो, अमेरिका में, कहीं पे भी हो, उसका हमें गर्व करना है। दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ, साहब ने, शादीलाल जी ने बहुत अच्छा बोला, जम्मू हमारी कर्म भूमि है, रणभूमि है अभी, और जम्मू के डोगरा लोगों का अभिनंदन करना है, जो उन्होंने हमें शरण दी अपने घर के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर। हमारी ना भाषा मिलती है, हमारे ना खाना पीना मिलता है, ना हमारा कुछ संस्कृति ऐसे नहीं मिलती। एक चीज मानती है कि हम हिंदू हैं और भारतीयता है। उन पड़ोसियों ने जो हमारे सैकड़ों सालों वाले पुराने नेबरहुड थे, उन्होंने अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दी जब जहादी हम लोगों को चुन चुन के वहां पे मार रहे थे, वहां से खदेड़ रहे थे। जम्मू के लोगों ने हमको एक्सेप्ट किया, 280 किलोमीटर दूर। डोगरा लोगों का अभिनंदन, बहुत उनका सम्मान करते हैं कि हमें उन्होंने इतनी छोटी सी जगह के अंदर हमें बसने दिया। पूरा कुछ इलाके तो जम्मू के अंदर ऐसे हैं जहां पे सिर्फ जम्मू के कश्मीरी पंडित रहते हैं, वहां पे कोई डोगरा नहीं रहता वहां पे। जबकि कश्मीर के अंदर मेरा कश्मीरी मुसलमान हमसाया, उसने अपनी खिड़की दरवाजे बंद किए जब हमें वहां से निकाल दिया जा रहा था। आज भी बोलते हैं कि तुमको जगमोहन ने निकाला, आज भी उनकी जबान पे नहीं आता कि उनके लोगों ने, उन्होंने हमारा जेनोसाइड किया वहां पे। इसीलिए जो हमारे जो जेनोसाइड, जिनको फांसी होनी चाहिए थी 30 साल से, वो उनके लिए, उन्हीं पड़ोसियों के लिए साहिब हैं, उनके वो लीडरान है वो लोग। तो इसलिए ये डिस्टिंक्शन शॉर्ट ऑफ टाइम, यहाँ पे आशुतोष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। थैंक यू राकेश जी। एंड आई थिंक ललित जी आपने ये पॉइंट छेड़ा है, और भट्ट साहब ने भी ये पॉइंट छेड़ा अभी, कि चाहे कोई भी कश्मीरी पंडित हो, चाहे वो कहीं भी रहता हो, और ये मैं बार बार कहीं सुनता हूँ, और राकेश भट्ट साहब मेरे साथ काफी फोरम्स में हैं, और ये पॉइंट बार बार आता है, हिडन तरीके से भी आता है कि तुम ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो तो तुम्हारा क्या हक बनता है। बट आपने जैसे बिल्कुल सही कहा कि अगर मैं कश्मीरी पंडित हूं, मैं चाहे आइसलैंड में बैठा हूं, ग्रीनलैंड में बैठा हूं या ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूं, मेरा कश्मीर के साथ जो नाता वो रहेगा।
उसको कोई भी कुछ भी बोले, उससे कुछ नहीं होने वाला। मैं कश्मीरी पंडित हूं, मैं कश्मीरी हूं, मैं कश्मीर के लिए बोलूंगा चाहे मैं जहां भी हूं। एक तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं हमारे श्रोताओं के लिए, दो चीजें हमको सोचनी पड़ेगी। हमारा जब जेनोसाइड हुआ और हमको भाग के जम्मू आना पड़ा, दिल्ली जाना पड़ा, आई थिंक पहला स्टेप तो ये था कि हमारे पेरेंट्स ने जो हमारे को राइट पाथ पे रखा कि भाई आपको पढ़ाई करनी है, यू डोंट हैव टू थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, दैट हैज बीन आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। सो ये मैं बाकियों के लिए कह रहा हूं कि हमारी कम्युनिटी को पता ही है कि हमने ये किया हुआ है। उसको छोड़ के भट्ट साहब ने पॉइंट कहा कि हमने कश्मीर में जॉब्स ली, एब्सोल्युटली एग्री भट्ट साहब आपके साथ। अगर हमारे को गवर्नमेंट से ऑप्शंस मिलते हैं, वी विल टेक ईच एंड एवरी ऑप्शन फॉर आवर नेक्स्ट स्ट्रेटजी। हमने पास्ट में हमने कुछ लोग कहते हैं कि हमको एक जगह चाहिए जहां हम रहेंगे। हमने होम मिनिस्टर को मेमोरेंडम भी दिया है कि आप हमारे लिए एक एडवाइजरी काउंसिल स्टार्ट कीजिए, आप हमारे लिए एक सिंगल कंसंट्रेटेड रिहैबिलिटेशन स्टार्ट कीजिए, रिस्टोरेशन ऑफ टेम्पल्स एंड उसके लिए बिल आप लाइए, और एक इंक्वायरी कमीशन, जैसे ललित साहब ने भी कहा अभी, एक इंक्वायरी कमीशन बैठाइए जिसने हमारे साथ जो ज्यादती की है, जो हमारा जेनोसाइड हुआ है, they have to be taken to task as per the rule of the law. There is no running away from that fact. That has to be the starting point of our discussion. I think I will stop at that, राकेश जी। मैं आपको वापस आपके हैंड ओवर करता हूँ। तो मैं लास्ट प्रश्न जो हमारे श्रोताओं से है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, और आई थिंक हम सब इससे सब इस प्रश्न को सही मानते हैं कि जब हमको आईडीपी का दर्जा नहीं दिया गया, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन का दर्जा नहीं दिया गया, रिफ्यूजी छोड़ो, रिफ्यूजी तो हमें मिल नहीं सकता था बिकॉज हम अपने देश में शरणार्थी बनाए थे, तो रिफ्यूजी का तो मसला उठता ही नहीं है। लेकिन हमको आईडीपी का दर्जा इन्होंने 31 साल हुए अभी तक नहीं दिया। आरती राशन कार्ड के नाम पे रखा हुआ है। हमारे जो किलर्स है बिट्टा कराटे, जो कि ओपनली बोलते हैं कि मैंने 25 लोगों को मारा है, 25 लोगों का नाम याद है, उसके बाद नाम भी याद नहीं है। बोला जाता है कि बोलते हैं पहला कत्ल किसका किया था, बोलते सतीश का किया था पहला मैंने। ऑन कैमरा वो बोलता है। वहां पे उसकी वाइफ एक आईएएस ऑफिसर है। जब वो जेल नहीं जाता है, यासिर मलिक को जेल नहीं भेजा गया, गिलानी को जेल नहीं भेजा गया, तो वहां पे आपको क्या लगता है कि सच्ची में जो हमारी गवर्नमेंट है वो इतना इंटरेस्टेड है हमारे वतन वापसी में? इसका जवाब कौन दे सकता है? Let me start, राकेश जी, let me start. I think अगर हम गवर्नमेंट की मंशा पे अगर हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट ready and willing to do it, so they have shown their willingness. That is 100% sure. अगर उनको willingness नहीं होती 370 वो नहीं हटाते, वो भी ऐसे पड़ा रहता, क्योंकि they had got some serious threats from PDP and Farooq Abdullah and other parties from the Kashmir Valley specifically कि अगर आपने इसको छेड़ा भी तो कत्ल हो जाएगा जी, खून की नदियां बहेंगी। But they took a stand. So I think by taking that stand and by revoking that 370, they have shown their willingness to go ahead and create a solution. Now, have they given us a solution to Kashmiri Pandits कि आप वापस जाइए और हमारे लिए उन्होंने कुछ किया कि अभी किया कि नहीं किया? I would say no. The short answer is no. But have they started working on the pathway for that? I would say yes. Yeah, I want to add to it. देखिए ऐसा है, कश्मीर के अंदर जो कुछ मैं सबको चाहूंगा कि उस पर विचार करें। दो चीजें हैं, एक तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से 370 और 35 से आए, और 370 और 35 एक की वजह से हुआ क्या था कश्मीर के अंदर? कश्मीर के अंदर वही जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी वहां पे फल फूल रही थी कि हम खास हैं, अलग है, जो महबूबा मुफ्ती भी बोलती है और जो अभी महबूबा मुफ्ती भी बोलती है और फारूक अब्दुल्ला भी बोलते हैं, इवन गुलाम नबी आजाद उस दिन पार्लियामेंट में जब बोल रहे थे बड़े भावुक हो गए थे लोग, कह रहे थे कि मैं तो वहां पे स्टूडेंट लीडर था, 15 अगस्त को मैं एसपी कॉलेज में झंडा चढ़ाता था, फिर 7 दिन कॉलेज नहीं आता था। अब उस गुलाम नबी आजाद को बोलिए, जब आप 7 दिन घर में रहते थे, कश्मीरी पंडित तो रोज वहां पे चलता फिरता तिरंगा थे, उनकी सोचिए उनकी क्या हालत होती होगी, वो 7 दिन कॉलेज नहीं छोड़ते थे। और दूसरी बात, उसी सरकार के अंतर्गत इस का आपने जिक्र किया, मैं चाह रहा था कि इसको भी उस परिपक्व से बोलूं, उसको वहां से उसको हिरासत से छोड़ दिया गया। और जस्टिस वानी की ऑब्जर्वेशन बताना चाहते हैं, ये सब याद रखिएगा, जस्टिस वानी ने ऑब्जर्वेशन दी है कि इस शख्स के खिलाफ
बहुत खतरनाक इल्जामात हैं, लेकिन बदकिस्मती से प्रोसिक्यूशन ने इस केस को परस्यू नहीं किया। इसी गुलाम नबी आजाद के अंतर्गत वहां पे शरिया कानून लाया गया। इसी गुलाम नबी आजाद ने वहां पे ये जो रोशनी एक्ट को एक्सटेंड किया। तो जैसे भी पॉलिटिकल पार्टीज है, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं जम्मू कश्मीर का जो बीजेपी का दड़ा है अभी, इसके लिए हमें बातचीत कर रही है। वो क्या कर रहे हैं वहां पे? क्यों वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने सेंट्रल टीम को? क्यों वो जम्मू के डोगरों को, आप देखिए जम्मू के डोगरों को नजरअंदाज किया जा रहा है, और जबकि इस पार्टी के अंदर वहां पे ज्यादा कश्मीरी पंडित है। इसलिए इसको पार्टियों से उठ के पॉलिटिकल एम्बिशियसनेस सब में, पॉलिटिकल पार्टी एनजीओ नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी के लिए वो धर्मार्थ का संगठन नहीं, वो पार्टी करेगी वोटों के लिए करे। लेकिन हमारा दायित्व बनता है हम जाके उनको बताएं हमें क्या चाहिए। अगर हम उनको जो अभी मिस्टर भट्ट कह रहे थे कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि नौकरी हमें वही चाहिए, देखो मिल गई नौकरी। आप चाहे मैं उससे मैं एक्सेप्ट मानता हूं या नहीं मानता हूं, मेरा ये मानना है, अभी भी मानता हूं कि नौकरियां सरकार को, हमें नौकरियां देना उनका फर्ज है, देनी चाहिए। शादीलाल जी मानेंगे, जिस जमींदार ने, जिस कश्मीर के किसान है, कश्मीरी पंडित किसान ने जम्मू नहीं देखा था, उसने जवाहर टनल क्रॉस नहीं किया, उसके साथ जो ज्यादती हुई है, उसको नौकरी देना क्या सरकार को फर्ज नहीं बनता? लेकिन क्या नौकरी मुझे उसकी सुरक्षा के साथ, सुरक्षा वातावरण में देनी चाहिए, या उसी वातावरण में देनी चाहिए जहां से उसके साथ उसका शोषण हुआ? तो ये डिबेट की बात है, अलग से बात कर सकते हैं। लेकिन इसलिए पार्टियों से जब आप सोचेंगे कि राष्ट्र प्रथम, हमारी जो कम्युनिटी का जो है उसके बारे में सोचा है, इंटरनली डिस्प्लेस्ड इशू जो है पिछले 30 साल से कई जगहों पे हमने बोला है, लेकिन पूरे लोग नहीं बोलते हैं इसके बारे में। और ये पॉलिटिकल पार्टीज है, वोट लेते हैं जम्मू के अंदर हमारे तहत, ये जो कश्मीर के अंदर जो एमएलए के या लोकल बॉडीज के लिए होते हैं, जम्मू के कैंप में बेशर्मी के साथ हमारे आके वोट लेके चले जाते हैं। और ये जानते हुए जम्मू, ये सरकार नहीं समझती, मैं जम्मू श्रीनगर की नालियों के लिए, कुपवारा की नालियों के लिए वोट दूंगा क्या, जबकि मैं जम्मू के कैंपों में रहता हूं मैं वहां पे। और दूसरी बात, एक चीज ये कभी मत कीजिएगा, क्योंकि जम्मू के डोगरों ने हमें वहां पे होस्ट किया है, कभी भी जम्मू के अंदर, जम्मू के पूल में से कभी भी पॉलिटिकल जगह बनाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उससे एंटागोनिज्म बढ़ जाएगा। ये मैं बार बार कहता रहा हूं, अभी तक हमने उनके जो म्युनिसिपल रिसोर्सेज है उसके पर हमको शेयर करें, लेकिन पॉलिटिकल रिसोर्स को शेयर करने की कभी सोचना भी नहीं, वो बड़ा नाजायज होगा। अगर हमको सीट चाहिए कश्मीर के पूल से चाहिए हमें, ना कि जम्मू के पूल से चाहिए। जैसे जगती की अभी बात कर रहे थे, कहीं की भी बात करें, कश्मीर के पूल, ना कि जम्मू के पूल से। ये प्लीज, ये मैं आई थिंक ललित जी, आपका ये जो पॉइंट है जम्मू और कश्मीर का, जो पॉइंट है आपका, ये पूल का पॉइंट जो है, आई थिंक उसमें ये भी हमको गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा कि जिस हिसाब से अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट पूल है वो गलत है। So they have to remove that also and सर वो do justice to that. वो अभी हो रहा है ना, अभी सेंसस हो रहा है, लेकिन वो भी गलत है, 21 में पूरे भारत के अंदर सेंसस हो रहा है, डिलिमिटेशन प्रोसेस अभी कर रहे हैं, जबकि जम्मू के लोग, हम लोग कह रहे थे डिलिमिटेशन प्रोसेस होना चाहिए। मुझे जब सेंसस होगा उससे पता लग जाएगा। मैं भी आपसे, आपने 2 दिन पहले न्यूज देखी होगी, जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा है जम्मू कश्मीर में, उसमें उन्होंने काफी सारी सीटें रिजर्व रखी है, कुछ SC ST या बाकी कैटेगरीज के लिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस टाइम हम कम से कम मोदी जी की सरकार में ये एक्सपेक्टेशन जरूर रखते हैं कि हमारे लिए उसमें कुछ सीटें रिजर्व रखी जाएगी, असेंबली में भी और पार्लियामेंट में भी। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर भी कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस जाएगा, जब तक कि उसको पॉलिटिकली हम एम्पावर नहीं करेंगे, जब तक कि हम उनके श्राइन्स की बिल की बात नहीं करेंगे, जो हमारे फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स आवर रिटर्न, टिल देन वी कैन नॉट एक्सेप्ट आवर रिटर्न। जब तक पॉलिटिकली और हमारे टेम्पल श्राइन्स को आप वहां पे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। ये आने वाले टाइम पे हमें मिलजुल के ये मुद्दे उठाने हैं, जोर शोर से उठाने हैं, प्रधानमंत्री के सामने, गृह मंत्री के सामने और स्टेट के जितने भी हेड्स हैं उनके सामने। हम समझते हैं, हम कुछ लोगों को अच्छे से जानते हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोग कुछ हैं अभी कनेक्टेड है दिल्ली की गवर्नमेंट से, उनके अलग अलग चेहरे हैं और वो हमारे प्रॉब्लम्स में कितने और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं वो हम यहाँ जम्मू में बैठ के जानते हैं। हम सब लोग चाहते हैं आप इन बातों की तरफ और भी ध्यान दे दें, ताकि ये लोग एक्सपोज हो जाए जो हमारी त्रासदी को नजरअंदाज कर रहे हैं, और हमें जो अपना हक है, हमारी जो रिजर्वेशन है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट या हमारा नाम, आइडेंटिटी, रूट्स,
तभी हमें ये वापस मिल पाएंगे। एक सौ थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ सर, अब माफ कीजिएगा। गज्जू सर एक सेकंड, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय आपकी अभी व्यूअरशिप है। एक इशू बताना चाहता हूँ जो कि बार बार उसको थोड़ा डायरेक्टली जिक्र भी हुआ यहाँ पे। देखिए, हमारा जो एडवर्सरी है, जो हमारा जो दुश्मन है, बहुत बहुत पावरफुल है। इंटरनेशनल उनकी एफिलिएशंस है। आज की तारीख में जब सऊदी अरेबिया कश्मीर जहाज को फंड करना कम कर दिया है, आज की तारीख में टर्की उभर के आ रहा है कश्मीर जहाज के नाम से। अमेरिका के अंदर जो अभी इलेक्शन हुए हैं, मैंने बार बार अमेरिकन इंडियन ऑडियंस को एड्रेस किया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बाइडेन को वोट दिया, ये जानते हुए जो बाइडेन का जो इलेक्टोरल एजेंडा था उसके अंदर एजेंडा फॉर मुस्लिम अमेरिकन में कश्मीर सबसे ऊपर है। आने वाले दिनों में हमारे पास डिप्लोमेटिक का भी प्रेशर आ सकता है। कश्मीरी जो पृथकतावादी है, कश्मीरी जो इस्लाम से जिहादी, उनका दुनिया भर से उनको सपोर्ट मिलता है। हिंदुस्तान के बुद्धिजीवियों से सपोर्ट मिलता है, हिंदुस्तान के हिंदू बुद्धिजीवियों से सपोर्ट मिलता है। लेकिन हम लोगों को तकलीफ होती है अगर ब्रिस्बेन में या ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे बैठ के कश्मीरी पंडितों के बारे में बोलता है। मैं अपनी तरफ से, हमारा जो एक्टिविज्म है पिछले 30 साल से, मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूं हिंदुस्तान के और लोगों के साथ जो मेरा समर्थन करे। लेकिन जब कश्मीरी पंडित मेरा समर्थन करता है, अनुपम खेर को मेरे बारे में नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अरे ये तो 90 का विस्थापित है, अरे ये तो 47 का विस्थापित है। 700 साल से हमारा जेनोसाइड शुरू हुआ और विस्थापन शुरू हुआ। और प्लीज उस एक मुद्दे के ऊपर इकट्ठे हो जाइए। कश्मीर के अंदर अभी गाने जो चल रहे हैं ना जहाद के नाम से, वो टर्की के बहुत बड़े जो उनके जो राष्ट्रीय कवि है वो लिखते हैं और पाकिस्तान के सिंगर्स उसको गा रहे हैं। कश्मीर के अंदर अभी इर्तागुल शायद हिंदुस्तान के कोई हिंदुस्तानी नहीं जानता होगा। कश्मीर के बच्चे इर्तागुल के वहां पे नगमे गा रहे हैं। इर्तागुल जिसने तुर्की के अंदर इस्लाम लाया था। तो प्लीज आप सोचिए, आपका एडवर्सरी बहुत खतरनाक है और आप जितना भी अपने लिए जोड़ सकते हैं समर्थन, ये मत बोले अपनी कम्युनिटी को मत डिवाइड कीजिए, ना ही गांवों और शहरों में, ना ही गोर और कारकुन के अंदर। प्लीज हम एक हैं, हम हिंदू हैं, कश्मीर के मूल निवासी हैं, हजारों साल की हमारी संस्कृति है और भारतीय है, इसलिए हमारा जेनोसाइड हुआ। और जहां से भी समर्थन मिलता है हमारी शर्तों पे, हम किसी को मानने वाले नहीं है, किसी पार्टी के जब तक वो हमारे साथ उसको कंप्लाइंस नहीं होगी, ये मान के चलिए। और पार्टी पॉलिटिक्स मत चलाइए अपनी पार्टी। एक चीज का हमें ध्यान जरूर रखना पड़ेगा, जो आप कह रहे हैं हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ तब तक किसी चीज पर सहमति नहीं है जब तक कि हमारे जेनोसाइड को एड्रेस नहीं करेंगे। लेकिन साथ में एक बात का हमें बहुत जरूरी ध्यान रखना पड़ेगा, आज के हालातों में जब हम कुछ ऐसे अपने स्टेटमेंट देते हैं जो देश के उस पार्लियामेंट के खिलाफ होंगे जहां पे नेशनलिज्म का इस टाइम जोर चल रहा है या वो नेशनलिज्म फोर्सेस को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, वहां जब हम ऐसी बातें करते हैं कि देश के गृह मंत्री एक फेलियर है, ये हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक होती है। इससे कम्युनिटी के इंटेंशंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क बनते अगर हम ऐसी बात करते हैं। हमने जब जिन गृह मंत्रियों ने हमारे साथ इतना गलत भी किया, हमने तब भी गृह मंत्री के ऊपर ऐसे विचार नहीं रखे क्या वो देश के एक फेलियर गृह मंत्री हो सकते हैं। इन बातों को हमें कंट्रोल में रखना पड़ेगा, इन बातों को सोच के ध्यान में देना पड़ेगा। हमारी भी गृह मंत्री के साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी जो हमें नहीं मिल रही है, but that does not mean we can comment that he is a failure Grah Mantri. Although I am not connected with that political party nor that person, but 4 बार सोचना पहले कि हम ऐसी बात जब करते हैं, जिन्होंने धारा 370 को हमें खत्म करके दिया जिससे मेरा जेनोसाइड एड्रेस हुआ, जिन्होंने 35A को खत्म करके दिया जिससे मेरा जेनोसाइड एड्रेस हुआ, क्या मैं उस गृह मंत्री को फेलियर गृह मंत्री कहता हूं? ये शेम होते हैं ऐसे लोगों के ऊपर, इससे हमारी कम्युनिटी बदनाम होती है। हमें ऐसा नहीं कहना है, हमें अपना पॉइंट रखना है, लेकिन नेशनलिस्ट फोर्सेस को मान के चलना है। मिस्टर बट थोड़ा बहुत शांत हो जाइए। आई थिंक यू आर ड्राइविंग। अब थोड़ा बहुत शांत से बात कीजिए, बिकॉज सुरक्षा इस समय बहुत जरूरी है। तो आपने जो बात की वो बहुत ही सटीक बात की है कि हमें अपनी भाषा पे संयम रखना पड़ेगा। जो भी है, अगर हम सोशल मीडिया या लाइव मीडियम किसी का भी उपयोग करते हैं तो अपनी भावनाओं को हमें साइड रखते हुए सटीक बात और सही बात करनी पड़ती है। और सिंस एक होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर एक संवैधानिक पद है,
वो कोई व्यक्ति का पद नहीं है, वो एक संवैधानिक पद है। तो एटलीस्ट हमें उस संविधान के पद का हमें आदर करना चाहिए और उनके प्रति हमें वो सम्मान, वो आदर दिखाना चाहिए, रिस्पेक्टिव कि वो एक बीजेपी के हैं या कांग्रेस के या किसी थर्ड पार्टी के हैं। ऑन दैट नोट मेरा क्लोजिंग क्वेश्चन शादिला जी आपसे है कि 370 हटने के बाद क्या होगा? क्या व्हाट आर आवर एक्सपेक्टेशंस आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370? आप म्यूट पे, शादिला जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आप म्यूट पे हो। शादिला जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। क्या कमाए 2 मिनट ललित जी, पहले अभी शादिला जी बहुत जी बड़ा कि आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। मैं आपको आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट, यू कैन एक्सेप्ट इट। यस, नाउ यू आर अनम्यूटेड, यू कैन स्पीक। धारा 370 तंत्र से हमारी मांग थी कश्मीरी पंडितों की, सबों की मांग थी। और कृपया करके अपने उत्तर को संक्षेप में बताइए कि उसके बाद क्या होगा। वो मांग थी किसकी थी? दैट इज द हिस्ट्री। 5 अगस्त 2009 के बाद वो खत्म है। उसके बाद क्या, वो मेरा प्रश्न है। कश्मीरी पंडित वैसा ही था, बल्कि आज उससे बदतर है। धारा 370 उठने के बाद कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ खास नहीं हुआ। मैं अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, तो हमारी कम्युनिटी के लिए 370 होने से हमारा फायदा क्या था? अगर आप कंपेयर करोगे 370 होने से भी हमें विश्वास मिला, उसके बाद तो अगर हम कंपेयर करेंगे बिटवीन टू वर्स्ट थिंग्स, सो व्हिच वन इज बेटर फॉर अस? मैंने पहले भी कहा, हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। हमारी आशा थी कि 370 उठकर हमारा सम्मान मिलेगा, हमें घर वापसी हो जाएगी, हमें कश्मीर में बसाएंगे, हमें इज्जत मिलेगा। वो कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है और ख्याल में होने वाला भी नहीं। हमने बार बार सरकार से बताया, शायद सरकार हमें ऐसी रखना चाहते हैं जैसा कश्मीरी पंडित है, जैसा कि आरजी राशन कार्ड का मुद्दा उठा, आरजी राशन कार्ड बनाकर दिया है। सरकारें चाहती है इनको आरजी ही रखेंगे। अगर धारा 370 उठाकर कश्मीरी पंडितों की बात की होती कि इनको हमने निकाला है हमारी वजह से, सरकारों की वजह से, पाकिस्तान की मिलिटेंसी, पाकिस्तान को मिलिटेंसी करनी है, वो मिलिटेंट देश है, वो चाहता है कि उथल पुथल करे, वो किलिंग करे। लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए हमारी सरकार थी, खासकर भाजपा सरकार ने वादे किए थे धारा 370 उठाकर कश्मीरी पंडितों को भी सम्मान मिलेगा, जो नहीं मिला है। हम इस सरकार से कहना चाहते हैं, वो सम्मान हमें दीजिए, वो सम्मान हमें दीजिए और कश्मीर हमारा भी है, हमें कश्मीर में बसाया जाए, इज्जत दिया जाए। जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, बार बार हमने मुद्दा उठाया है। शादिला जी थैंक्स, आपने जो बोला वो मैं समझा। one minute, half a minute. No, you see, ये जो हमारी जो I can imagine helplessness, frustration, 30 साल से हम लोग घर से बेघर हैं, तो 30 साल से हम हर एक के मुंह से यही सुनते, या तो कश्मीरियत के नाम से सुनते, नहीं तो वापसी की बात करते। कश्मीरियत हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है। कश्मीरियत होती तो हमारा जिनोसाइड नहीं होता। दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ, फर्क कीजिए 370 हटने और कश्मीर जहाद के बीच में। 370 और 35 से हटाने से कश्मीर के अंदर जो पिछले 70 साल से वो इकोसिस्टम था, वो मानसिक था, सुपरमैसी और एक्सक्लूसिविटी का, वो प्रक्रिया तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके अंतर्गत कश्मीर का आम मुसलमान हिंदुस्तान के आम हिंदू से तो छोड़ो, हिंदुस्तान के बाकी मुसलमानों से भी अपने आप को अलग समझता था। उसका दिल धड़कता था एलओसी के बाद पाकिस्तान से रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का होता था वहां पे, है ना। तो वो प्रक्रिया शुरू हुई है, वक्त लगेगा। 70 साल की बीमारी है कंटेम्परेरी सेंस में, नहीं तो 700 साल पुरानी है। दूसरी बात, कश्मीर जहां मिलिट्री प्रॉब्लम है वो लड़ना पड़ेगा, और हम लोग जहां जहां मौका मिलता है हम लोग ये कोशिश करें उनको बताने की। ऐसा नहीं होगा कि कश्मीरी पंडित भी वहां रहेगा, इलेक्शन भी होंगे, कॉलेज भी जाएंगे, अफगानिस्तान काबुल की तरह वहां बम धमाके भी होते रहेंगे। इस परिस्थिति में कोई कश्मीरी पंडित में नहीं जाएगा। अजय भारती पंडिता का जब लास्ट ईयर जब कत्ल हुआ, क्या किस परिस्थिति में हुआ, कितनी देर उसकी वो जिंदा था, सड़क पे पड़ा रहा, पूरे गांव के अंदर एक हिंदू गया था वहां पे, वो चाहते तो उसको ले जाते हॉस्पिटल, उसकी बहन रोती रही वहां पे सड़क पर, कोई उठाओ। तो मैं शुक्र करता हूं, उसको मैं नमन करता हूं जिस आदमी ने अपना वो हौसला दिखाया, उसको हॉस्पिटल लेके गया, वक्त पे ले जाते शायद अजय
भारतीय पंडित जिंदा रहते। अभी भी किसी भी कश्मीरी मुसलमान ने नहीं बोला कि आपका जेनोसाइड जो है औपचारिक तौर पे हम लोगों की वजह से हुआ, नहीं हुआ। तो वो हम चाहते भी नहीं, हम उनसे उम्मीद भी नहीं करते, क्योंकि जो मैं ये मानसिकता है हम जो यजीदी के साथ मिडिल ईस्ट में हुआ है वो हमारे साथ कश्मीर में 30 साल पहले हुआ। सर्वानंद प्रेमी की आंखें निकाल के बेटा उनके सामने कत्ल कर दिया, ये दुनिया ने ये आईएसआईएस के द्वारा यजीदीज के साथ हुआ। अब देखा उन्होंने हमारी औरतों के साथ क्या क्या उन्होंने ये यजीदीज के साथ अब हुआ। ये शुक्र है कि हम अभी ज्योग्राफिकल कनेक्शन था, हम वो फाइनल असॉल्ट में बचे, हम यहां तक आ सके। 280 किलोमीटर दक्षिण में जम्मू में हमने पनाह ली, लेकिन ऐसा अगर नहीं जगह होती तो खत्म हो जाते हम लोग। तो इसलिए ये मानना कश्मीर जहाज एक बहुत है, कोई भी सरकार अगर बोले आपको कि मैं आपको कल ले जाना चाहता हूं, शादीलाल जी आप नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते हैं। आपका पड़ोसी किस घर में जाओगे आप? आपका घर या तो छीन लिया गया या तो उसके बेच दिया गया, तो कहां रहेंगे आप? किधर रहेंगे हम लोग? तो सरकार के ऊपर प्रेशर बरकरार रखना है कि जब तक आप कश्मीर जहाज को निवारण नहीं करोगे और साथ में हमारी रिहेबिलिटेशन का ब्लूप्रिंट नहीं बनाओगे, तब तक नहीं होगा। साइमल्टेनियसली चलेगा। 100 साल अब कश्मीर जहाज चलता रहेगा तो क्या मैं ऐसी हालत में रहूंगा कि मुझे कहां जाना है? करनी चाहिए, आज शुरू होनी चाहिए। आई थिंक जो हमारी जो हमारा जो इशू है ये जुनोसाइड, इसके ऊपर हम जितना भी बोले उतना कम है। एक दिन, एक हफ्ता या एक साल भी इसको व्यतीत करने के लिए, इसका बखान करने के लिए बहुत कम है। तो ये डिस्कशन अब हमें यहीं पे रुकना पड़ेगा, बिकॉज हम ऑलरेडी ओवरशूट हो चुके हैं समय के। सो सबसे पहले मैं अभी सभी अपने पैनलिस्ट का मिस्टर ललित अमरदार, श्री आशुतोष सैना, श्री आर.के. भट्ट और शादीलाल पंडित जी सबका हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला, हमसे बात की, वो भी एक संडे के दिन। मुझे तो ये भी पता चला कि शादी ललित जी ने एक उनके दोस्त की बेटे की शादी थी, उनका वो समारोह उन्होंने मिस किया इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो ऐसा उसके बावजूद आपने इम्पोर्टेंट अपने कार्यक्रम छोड़ के आपने हमारे बीच आए, हमसे बात की, उसके लिए लोटस वॉल आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। ऑन दैट नोट, लेट मी लास्ट टाइम एंड फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट ऑल माय व्यूअर्स ऑफ दिस वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में बेल का आइकन है, उसको क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कीजिए, ताकि जब हम लाइव जाए या जब हम नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन जरूर आएगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देखोगे। और आप फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी हम हैं, आप हमारे पेजों को लाइक और फॉलो कीजिए। जो हमारी ये लाइव स्ट्रीमिंग थी ये 2 जगह चल रही थी, यूट्यूब एंड फेसबुक दोनों जगह पे चल रही थी। हम दोनों जगह के श्रोताओं से निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसको सर्कुलेट भी कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि हमने किस चीज पे आज डिस्कशन किया और उसका निष्कर्ष क्या निकला। ऑन दैट नोट मैं अपनी वाणी यहाँ पे देता हूँ विराम। जय हिंद।